بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ سورہ تغابن مکمل ہونے جا رہی ہے. اس کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 16 سے 18، اس کا ہم انالیسس کریں گے، گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ انشاءاللہ. جی آئیں، میں نے کنہیں بلایا تھا، آپ آئیے. اچھا ایک سیکنڈ رک جائیے گا، میں بھول گئی کہ میں نے تو کچھ پہلے شیئر کرنا تھا. ایکچولی آیت جو شروع ہو رہی ہے نا، بعض تھا کہ بیچ میں بریک نہیں دیتے، تو میں شروع میں ہی آپ بتا دوں، سلائڈ ایک دو شیئر کر دیجیے گا 1 منٹ کے لیے. آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے فتقوا اللہ سے. تو اس میں جو اتقو ہے، بیسیکلی وہ اتقو ہے، اور چونکہ وہ اس کا حمزہ وہ امر ہے اور وہ حمزۃ الوصل ہے، تو وہ جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے تو گر جاتا ہے. اب وہ کیسے بنا، تو میں نے کہا کہ آج ایک دفعہ، آج آیات چھوٹی سی ہیں، جلدی انالیسس انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گا. تو یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکسیپشن میں سے باب افتعال کی ان کو شیئر کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے. لیکن جو جدھر آتا ہے اگر اس کو وہاں پہ ڈسکس کیا جائے تو شاید اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. باقی آہستہ آہستہ خود ہی یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیسے بنا؟ اتقو، واو قاف یا مادہ ہے، باب افتعال ہے، افتعلا یفتعل. یہ بہت پرانی، کوئی 3 سال پہلے کی سلائیڈ ہے، جب میں نے بالکل سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ سے یہ شیئر کی تھی. اس کو میں نے ایک ایک بلکہ لفظ کو، حرف کو کھول کھول کے لکھا ہے، ورنہ آج کو ملا کر بھی لکھا جا سکتا ہے. تو یہ بنا ایو تاقیا یو تاکیو، اس طرح سے بنا. چاہے ملا کے لکھ لیں، چاہے جس طرح جس کو آسان لگتا ہے، آپ سمجھیے گا اسے بس. یہ ایک قاعدہ ہے جو لسان القرآن میں سب سے آخر میں آپ کو یہ قاعدہ ملے گا کہ اس باب کے فا کلمہ پر اگر واو یا یا ان دونوں میں سے کوئی آ جائے، کس لکھیے قاعدہ، یہ دونوں میں سے اگر کوئی باب افتعال کے فا پر آ جائے تو وہ وہ کیسے؟ اب ایو ہے تو آ کر آئی ہوپ کیا ہوگی تو اب بدل دیں گے. تو اب اس آیات ماضی میں بھی مضارع میں، تو جب وہ اب وہ سیم باقی پہلے ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرا متحد کو ملا دیں. آخری سٹیپ فردر ہے جو سیاہی ہوتا ہے. میری آواز خراب ہو رہی ہے؟ کسی اور کو بھی پرابلم ہو رہا ہے کہ صرف روبینہ جی کو ہو رہا ہے؟ مجھے ذرا بتائیے گا. باقیوں کو جی آواز جی سمجھ پرابلم نہیں آ ہو رہی؟ رہا ہے، بتائیے. السلام علیکم. پرابلم ہو رہا ہے آپ کی آواز میں بہت زیادہ. جی ہو رہا ہے. ہے کوئی پرابلم یہ سگنل کا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا آپ ٹالریٹ کیجیے کہ مجھے تو لگ رہا تھا شاید میں کلاس ہی نہ لے پاؤں. یہ تھوڑا سگنل کا پرابلم ہو رہا ہے. چلے گزارا کر لیجیے، شاید ریکارڈنگ میں کچھ بہتر ہو تو آپ اس سے بھی سن سکتی ہیں. چلے جن کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، باقی صبر کیجیے، صبر کا بھی اجر ہے. چلیں جی، وقت ضائع کیے بغیر آگے چلتے ہیں. اور اس طرح کے ایشوز تو ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اتقا یا تاکید یہ بن گیا، لیکن ایک فائنل آگے آخری سٹیپ ہے جو کہ یا ناقص یائی. ناقص یائی کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف، یعنی کہ وہ مادے کے حروف جن میں آخر میں ان افعال میں ان کے جو حروف مادہ ہیں ان میں آخر میں یا آتی ہے. تو اس کا اپنے قواعد اب دوبارہ اپلائی ہوں گے. اس کا پہلا قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ یا متحرک، اس سے پہلے اگر زبر ہو تو یہ کھڑے الف لینگویج میں کھڑا سے بولا ہے
लफ्ज होता है वो इसके लिए फाल के लिए नहीं बोलना चाहिए हमें, वो एक्चुअली यूज है, ठीक है, वो नहीं इसके लिए बोलना, वो फाल के लिए नहीं होता जो खड़ा अलिफ होता है। अच्छा ठीक है, तो आप और इस तरह से मैं 2 हरकत लंबा करके इसको पढ़ूंगी। और यत्ता की यू इसमें किस का उससे या कर लो इत्ता की बस नहीं। आज बहुत फिर मैं सिर्फ यही कह के गुजर जाऊंगी कि ये बाबी इफ्तियाल की एक्सेप्शन में से है, इसको आप खुद देखिएगा। अच्छा इसमें क्या था, हाँ या नहीं गिरेगी, याद रखना आपने, या कब गिरती है नाकिस वालों की, इनकी जब आमतौर पर 2 सूरतें याद रखें, जब अमर बनाया जाता है या जाजिम पहले, ये फाइनल फाइनल टच ये बन गया। यत्ता की, ये मैंने ये नई स्लाइड है, वो मेरी बहुत पुरानी थी, मैंने कहा चलिए मेरा वक्त बच जाएगा। यत्ता की इसका वो जो पहले मैं ये से या से ही बना लेती हूँ जमा मुजक्कर गायब का, यत्ता की यूना तीसरा सीगा, उससे फिर हाजिर का चाहे बना लें। डायरेक्ट हाजिर का आपको आता है तो डायरेक्ट, जिसको जैसे इजी लगता है, स्टेप बाय स्टेप से याद ज्यादा रहता है, समझ ज्यादा आती है। तत्ता की यूना बन गया। अमर बनाए सबको आता है और मैं उम्मीद करती हूँ आना भी चाहिए। इसमें जो हरूफ मुदारे, ये ता है अलामत मुदारे, ये गिर जाएगी, एंड से नून गिर जाएगा, उसकी जगह एंड पे खाली एक अलिफ आ जाएगा। और ये चूंकि ये शद वाला है, इससे पहले ये इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, इससे पहले अब आपको जितने भी फेरे अमर हैं आपको इससे पहले ये लेकर आना पड़ेगा, हमजतुल वस्ल, ठीक है, सिवाय बाबे इफ आल के, उसमें जबर वाला होता है, बाकी सब में अकॉर्डिंगली होता है जेर या पेश वाला। उसमें कुछ अबवाब का ख्याल किया जाता है, बाद स्टूडेंट ने उस तरह पढ़ा होता है, स्टडी की होती है, बाद में वो तीसरे हर की अलामत से पहचानते हैं, जिसको जो आता है जिस तरह आसान है। तो इसमें अब ये जेर वाला आएगा, हमजतुल वस्ल इत्ताकी बन गया। अब इसको फाइनल टच देना, ये स्टेप बहुत कंफ्यूज करता है। असल में ये काफ के नीचे जेर है, लेकिन जब ये फाइनल शक्ल आएगी तो काफ के ऊपर पेश के साथ है, तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये इसकी अपनी नहीं है, ये चेंजेस के बाद आई है। चेंज क्या है, अब 2 हरूफ इल्लत इकट्ठे हुए तो उसमें से एक को गिरना होगा, 2 हरूफ इल्लत कभी इकट्ठे नहीं आ सकते। और याद रखें एक कायदा, हमेशा मादे का गिरेगा, सीगे का कभी नहीं गिरेगा। जो सीगे का यहाँ पर वाव है, वाव भी हो सकती है या भी हो सकती है, वो नहीं गिरेगा, वरना आप सीगा नहीं पहचान पाएंगे कि जमा का है, वाहिद का है, जो भी है मुजक्कर है होने से फिर वो पहचाना नहीं जाता। तो इसमें ये वाली या गिर जाएगी जो कि इसकी इनकी आप कह लें कि मादे की है, ठीक है, मादे का हरफ इल्लत गिर जाएगा, सीगे का कभी नहीं गिरता, मादे का गिर गई। उससे पहले अगर काफ, जो भी काफ की जगह कोई भी हो, उसके ऊपर अगर तो जबर हो तो सीगा तैयार है, बस इतना कऊ ये फाइनल था अगर जबर होती। और अगर किसी ने इस तरह नहीं पढ़ा, मैंने कहा ना जिस तरह भी आप पढ़ा, बस फाइनल शक्ल ये बननी चाहिए, तरीके रास्ते बहुत मुख्तलिफ। अगर तो ये final था, लेकिन अब यहाँ पर जेर या पेश सूरत में अब आपको बच इल्लत उसको देखना पड़ेगा। अगर तो वो वाव बचा है तो इस कॉफ को पेश दे दें, अगर तो वो या बची होती तो इस कॉफ को जेर दे देते। वैसे इस पे जेर ही है लेकिन इस तरह से होता है। अब यहाँ पर वाव बची है, जो बचने वाला हर्फ इल्लत है, उसके अकॉर्डिंगली अब डिमांड होती है पेश दे दें, इत्ताकू बन गया। साथ ही हम आइक और अतियु, ये भी मैंने पिछले दिन ही करवाया, लेकिन इसको जल्दी से 1 सेकंड में इसको भी देख लेते हैं। अब एक एक लफ्ज को तो नहीं, चले जो मेरे पास अवेलेबल है स्लाइड, मैंने कहा चलिए आपको जल्दी से रिवाइज हम कर लेते हैं। तो वाव आइन, ये आज 2 अबवाब से आएगा, इसको भी डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह, बाब इफाल से भी और बाब इस्तफाल से भी। अब इसमें क्या है, ये बाब इफाल में अगर इसको रखें तो अतवा युतवियु, ये इस तरह से पुट किया, लेकिन ये फाइनल शक्ल नहीं है।
ये जो जिनके एंड में वाव या आती है, इनके अपने आगे से बहुत कायदे हैं, मोटे मोटे 2-3 ही है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वो भी आते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अथवा युत व्यू, अब पिछले वाले में मैंने आपसे नाकिस के कायदे शेयर किए थे, इसमें अजवब के हैं। वो कम से कम एक कायदा तो यूनिवर्सल मेरे ख्याल में सबको आना चाहिए, पक्का पक्का होता है कि ये जो बीच में वाओ या आती है, ये आमतौर पर मुतहर्रिक ही होती है। इससे पहले अगर जबर हो तो ये जो है अलिफ में बदल जाएगी। ठीक है, इससे पहले जरूरी नहीं कि जबर हो, वो अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि इसको चेंजेस भी होती हैं। तो लेकिन ये अलिफ में बदल जाएगी, चलिए यूं ही समझ लें आप। यहाँ पर देखें अत व आ है, तो वाव मुतहर्रिक है। ठीक है, तो इससे पहले अब बाय चांस जो वो तो है वो साकिन है। अच्छा, अगर वो साकिन ना होता, जबर होती, तो तब भी इसने अलिफ में, पूरे अलिफ में बदल जाना था। लेकिन अब ये एक और कायदा शायद मैं कहीं मैं मिक्स ना कर दूं, मुझे काफी अरसा हो गया इनको देखे हुए, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ये वाला कायदा ठीक ही सारे बता रही हूँ। अतवा, बस इसको फोकस करें। अतवा, ये अजवब जेन में रख कर आपने चलना है। इसमें क्या है, इसका एक और ये भी कायदा होता है, ये जो वाव और या होती हैं, इनकी हैबिट होती है कि अगर इनके जो नेबर में अगर किसी के पास कोई हरकत नहीं है, ये बहुत जेनरस होती है, ये अपनी हरकत उसको दे देती हैं। और ये अजवब का एक कायदा याद रखें, ये अपनी हरकत जो देगा ना पीछे अपने नेबर को, उसके अकॉर्डिंगली ये हर्फ में बदल जाएगा। अब इस वाव अगर ये पीछे जबर देगी तो ये अलिफ में बदल जाएगी। ठीक है, अगर ये पीछे जेर देगी तो ये या में बदल जाएगी। इस तरह से होता है। अब ये पीछे जेर जबर देगी तो जबर आ जाएगी तो के ऊपर, खुद ये बन जाएगी अलिफ, तो ये बन जाएगा अतो आ। अब मुदारे को देखें, युत भी उ, उसमें फिर इसकी पिछली जो है वो इसका साकिन है। साकिन ना हो तो पहला कायदा यही होता है, ये डायरेक्ट ये पूरे अलिफ में बदल जाती है उसमें दोनों। हम साकिन वाले को देख रहे हैं। अब साकिन वाले में क्या होगा कि ये अपनी हरकत पीछे देंगी, और जो हरकत ये दोनों देंगी, वाव या, इस वक्त वाव की बात हो रही है, अजवब वावी की, जो भी हरकत पीछे देंगी अकॉर्डिंगली उससे रिलेटेड हर्फ में बदल जाएंगी। अब इसने अतवा आ माजी में वाव ने पीछे जबर दी तो अलिफ में बदल गई। मुदारे में वाव पीछे जेर देगी तो ये अब या में बदल गई। युतवी, तो अब ये या में बदल गई तो युतीयु। ठीक हो गया जी, अतौआ युतीयु। युतीयु से युतीयुना या तुतीयुना, और फिर आगे वही अमर बनेगा, ता गिर गई, नून गिर गया, और नून की जगह खाली अलिफ आ जाएगा और हमजातुल वस्ल लाना पड़ेगा। बाबी फाल के फेले अमर बनाने के दो तरीके होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बाबी फाल का जो अलिफ होता है ना, ये हमजातुल वस्ल नहीं होता, ये इसका कतई होता है। ठीक है, अब ये जो इसका अपना आप कह लें इसका असली है, ये पूरे इसकी गर्दान में साथ साथ चलता है, बोला भी जाता है असल में। लेकिन क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है, अरब में क्या होता है, चीजों को शॉर्ट कर देते हैं, वो इसके अलिफ को बोलते ही नहीं है बीच में। तो फिर क्या होता है कि बाज अच्छा गर्दान बनाते हुए इसके अलिफ को साथ रखते हैं जबर वाले को। लेकिन मुझे ये तरीका बहुत आसान लगा जब कभी मैंने पढ़ा था, फिर जब कभी मैंने पहली दफा स्टूडेंट को पढ़ाया। तो इसका ये होता है कि आप फेले अमर बनाएं, फिर जब हमजातुल वस्ल की बारी आए तो जेर और पेश वाले उसकी तरफ ना जाएं, इसका बस याद रखें कि ये जबर वाला आएगा। तो ये अतीयु बन गया, और ये इसी आयत में ये आगे आएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, मैंने कोशिश की कि एक दफा इनको भी, आज थोड़ा टाइम था, आज जल्दी होने की उम्मीद है, बाकी तो कोई पता नहीं, टाइम बाद दफा लग भी जाता है। तो इनको भी रिवाइज कर लें, जिन बहनों को तो आता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं आता, जो नई स्टूडेंट है, मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह मुझे अल्लाह करे याद रह जाए। ये स्लाइड में क्लास में ग्रुप में पहले मैं रेगुलरली शेयर करती थी, अब मैं अक्सर मेरे जेहन से निकल जाता है। मैं शेयर करूंगी, नहीं तो आप अपने तौर पे जब मैं ये क्लास ले रही होती हूँ स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, आप रिकॉर्डिंग से भी ले सकती हैं, जिसको जो इजी लगे। एक दफा इनको रिवाइज कर लें, नहीं तो जिस तरीके से आपने पढ़ा हुआ है, अपने नोट्स, अपनी जो वीडियोस, जिस उस्ताद से भी आपने पढ़ा है, आप इस तरह की एक एक आयत, 2-3 आयत होंगी इस क्लास में, ज्यादा शुरू से ही नहीं है, ये क्लास बहुत शॉर्ट चल रही है। दूसरी क्लास में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, उसमें भी बल्कि कम कर दी गई है पहले से। तो 2-3 आयत हफ्ते में, मेरा ख्याल है एक एक लफ्ज को खोल लें, उसको बिल्कुल खोल के बनाएं, देखें, इंजॉय करें, तो बड़ा मजे का, खुशी वाला, इंजॉय करने वाला काम होता है। उसको देखें कैसे बना है, जहां से भूलता है, सबको भूलता है, कोई इंसान इतना जीनियस नहीं होता। हम सबको, पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले को भी रिवीजन साथ साथ करनी पड़ती है। आप अपने नोट्स निकालें, अपनी रिकॉर्डिंग वीडियो जहां से भी पढ़ा है, नहीं तो लिसानुल कुरान बुक से, जिसने जहां से पढ़ा है, इन कायदों को, कवायद को साथ साथ देखा करें।
پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ واقعی کسی حد تک پکے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر لمبا گیپ آ جائے کئی ماہ کا تو ہو سکتا ہے ذہن سے نکل جائے, ورنہ واقعی اللہ تعالیٰ کی برکت سے چیزیں پکی ہونے لگ جاتی ہیں. پھر آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی, تو ان کو دیکھا کریں. چلیں جی, آج کی بحث کی طرف چلتے ہیں. اب یہ ہم بالکل ان پہ ٹائم نہیں لگائیں گے, جو آ رہی ہیں آئی تھنک شمع جی آ رہی ہیں, تو بس ہم جلدی سے ان کا نام سے فائل پوچھوں گی اور ہم آگے چلیں گے. آئیں شمع جی, آیت نمبر 16, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. آئیں جی, ایک ایک لفظ بلکہ تھوڑی سی اس آیت کو پڑھیں, پھر آپ اس کے ایک ایک حرف جو آپ پیاری کر کے ہم سے شیئر کریں. جی آئی تھنک شمع جی تھیں, عائشہ جی تھیں, ارم جی تھیں. میں نے شاید شمع جی سے کہا تھا, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں سنانا چاہ رہی. سعدیہ جی نے ہینڈ ریز. شمع جی آئے, آپ نہیں سنانا چاہ رہے. Actually, آپ کی السلام علیکم. آپ آپ کی لوگوں نے آواز اپنا رکھ کے آئی تو نظر سے پہلے ایڈریس کیا, کوشش پہلے میں اسے سنوں, بات کو میرا دھیان, لہٰذا میری بلکہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ساری آیات کر کے آنا چاہیے آپ لوگوں کو, میں کہیں سے بھی سن سکتی ہوں. اچھا شمع جی نہیں ہے شاید, یا تو چلی گئی ہیں. سعدیہ جی ہیں, سعدیہ جی آپ تو بہت سینئر ہے ماشاءاللہ. میں آپ سے اس کلاس میں, میری کوشش ہے میں پہلے ان سے سنوں جو اس کلاس کی ہیں اسٹوڈنٹ, جو جونیئر ہیں, جو بعد میں آئی ہیں. عائشہ سے سنوں گی, اور کوئی سنانا چاہیں. ارم صاحبہ بھی سینئر ہیں, آپ دونوں بلکہ دوسری کلاس میں کوشش کیا کریں. اس میں ذرا ان کو موقع دیں جو جن کی یہ کلاس ہے. چلے ٹھیک ہے عائشہ بیٹا آپ آ جائیں, پھر جب کوئی اور ہینڈ ریز کریں گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو ارم صاحبہ اور سعدیہ صاحبہ سے سن لیں گے. نہیں اگر کسی نے تیاری کی تو چلے کوئی بات. اس کو پڑھیں اس آیت کو. جی عائشہ. میم السلام علیکم. میم وہ نماز کے لیے گئی ہے, ان کا میسج آیا تھا. اچھا اچھا سوری, میں نے شاید, ہاں میں نے بالکل نہیں دیکھی میسج. ٹھیک ہے چلیے پھر آپ آ جائیں. میں ویسے اوائڈ ہی کر رہی تھی کہ آپ تو ماشاءاللہ اتنی سینئر ہیں, میں چاہتی ہوں کہ نئی اسٹوڈنٹ آیا کرے اس کلاس میں. اور چلیے آ جائیں پھر آپ. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سے پڑھیے اس آیت کو, پھر اس کا انالیسس شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. فاتقوا اللہ ما استطعتم, فتقوا میم باب افتیال سے اس کو یہ چھوڑ دیں گے, ہم نے دیکھی ہے, بس مجھے بتا دیں اس کا فائل. لیکن اس سے پہلے فا اب تھوڑا سا بتا دیں, زیادہ مشکل والا نہیں, ایزی کر کے بتائیں کون سی فا ہے. میم فا کو استنافیہ کر لیں. استنافیہ کریں, بالکل میں یہی چاہ رہی تھی. اس کو کوئی مشکل ٹرمینالوجی نہیں, سمپلسٹ وے میں لے کے چلیں اس آیت کو. بہت طرح سے اس کی ترکیب آپ لوگوں کو ملے گی, تو سب سے سمپل والی جس سے کہ ہمارے ترجمے کی جو ہماری حاجت ہے پوری ہو جائے, وہ بہت ہے. اس کا فائل بتا دیں. جی میم اس کا طرف فائل ہوگا, واو ضمیر مرفوع متصل. ٹھیک ہو گیا جی. واؤ کہہ رہے ہیں جو انتم جنہوں نے پڑھا ہے جیسے ہے. اللہ لفظ جلالہ جو ہے, اس میں جلالہ یہ ہو گیا اس کا مفعول بھی. یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے فی الحال یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. اس کا ترجمہ کر دیں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یا اور اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے شاباش. یہ جو فا ہے نا, اس کی اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہو نا سمجھ آ رہی, اور اس کے ساتھ کر دیا کریں. سو پس اللہ سے ڈرو. یہ جو ہوتا ہے نا واؤ قاف یا, سو یہ ہمارے یہاں شاید استعمال ہوتا ہے, شاید آپ لوگوں کے یہاں نہیں ہوتا. پس کر دیں, پس کر لیں, اس ہر ایک کو کفایت کر جاتا ہے, ہر فا کو, جی اگر کسی کو کنفیوژن ہو رہی ہے. اور ویسے آیت شروع ہو رہی ہو تو وہ استنافیہ ہی بنا لیا کریں, بہت ایزی ہے. اگر اسپیشلی جب ہمارا آدھا اللہ پچھلے سے کلاس ڈرو. میں گزر گیا ہے. اچھا گزر گیا سے یاد آیا جی, بالکل ایکچولی ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم کہ یہ تمہاری بیویاں, تمہاری اولاد, یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے. اب اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس میں واؤ قاف یا, یہ جب باب دارا با سے آتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی نقصان سے یا تکلیف سے بچانا. اس کے تب دو مفعول ہوتے ہیں, کس کو بچانا, کس سے بچانا. ٹھیک ہے, کس کو بچایا, کس سے بچایا, اور دونوں کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں آتی ہے, ایز اٹ از آتے ہیں. جب یہ باب افتعال میں آتا ہے نا, تو تب یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا, خود بچنا. یہ جو متقی کا لفظ ہے نا, یہ اس بات سے
आगे आप डिराइव, उसका इसमुल फाइल है ये। तो ये बाबी इख्तियार से जब होगा तो उसका मतलब होगा कि खुद बचना, अपने आप को बचाना। बेसिकली क्या होता है, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचना। मैंने बताया ना, इसमें असल में तो ये बचना होता है, गुनाहों से बचना, और इसमें डर का मफहूम भी होता है। तो आप चाहे, और इसको तकवे को, तकवा भी हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है, थोड़ा अंडरस्टैंड किया जाता है इसको। तो तकवे का जैसे इन्होंने किया ऐसे भी तर्जमा कर सकते हैं। तो एक और बात, जब ये किसी सुलासी मुजर्रद में आता है तो उसका आप यूं कर सकते हैं कि डरना, सिंपल। जब ये मजीदुल फी अब्वाब आते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मुबालगा, किसी काम का ज्यादा होना या बार बार होना आ जाता है। यहाँ अगर कोई इस तरह तर्जमा करता है ना, बस अल्लाह से डरते रहो, तो ये भी बहुत अच्छा है इसका। ताकि ये जो मजीदुल फी अब्वाब होते हैं ना, जब कोई हरफ बढ़ जाते हैं ना किसी लफ्ज में, तो उसके मफहूम में भी शिद्दत आती है किसी ना किसी तरह। अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे किसकी कहाँ कैसे होती है। बाकी हर बात की अपनी सिफात भी हैं, लेकिन ये ओवरऑल मैंने आपको सुलासी, मुजर्रद और मजीदुल फी का बताया। बस अल्लाह से डरो, या अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, जैसे सादिया जी ने किया, बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह से डरते रहो, ये भी ठीक है। आगे जो माँ मस्ततातुम मौसूला। है, इसका बहुत तरह से किया गया है तरकीब में। आप सादिया जी, आप किस तरह करेंगी? सबसे सिंपल वाला लेकर चलें। मैम इसको मैंने तो हाल बनाया है। ये इत्तकू पहले में तो जो बताएं जमीर आपने है ना, माँ को क्या बनाया। माँ मौसूला और आपने इस्ततातुम। शाबाश, ठीक है। देखिए, ये जो माँ है ना, इन्होंने मौसूला और आगे सिला बना के इस मौसूल सिला को इत्तकू के अंदर जो वाव जमीर है उसका, वो जुल्हाल, और इसको हाल बना लिया, और ये महल्लन मंसूब हो गया। ठीक है, बस यही लेकर चलेंगे। हल्का सा बता देती हूँ किसी को अगर इंटरेस्ट हो। इस माँ को मजदरिया भी बनाया गया, और इसको एक्चुअली ये वो वाला मजदर है जो जरफिया मजदरिया, एक माँ होता है ना, जरफिया मजदरिया, उसमें जर्फ का माना भी होता है, जर्फ जमा का भी हो सकता है, मकान का भी हो सकता है। तो इसका फिर तर्जमा अकॉर्डिंगली होगा। कोई जिन्होंने ये बनाया है उसका तर्जमा वो फिर उस तरह से करेंगे कि आ, जब तक के, ठीक है, जब तक तुम इस्तिताअत रखो, जहां तक तुम इस्तिताअत रखो, उस तरह से। और जिस तरह हमने बना लिया है, इसका फिर हम सिंपल कर लेंगे कि जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, ठीक है, ये रखो। ये तुम ताकत रखते हो, वो देख लेते हैं सादी जी ने कैसे किया, और फिर इस बात के अकॉर्डिंगली इसका तर्जुमा हम देख लेते हैं। तो आप, मेरा ख्याल है ये सबसे आसान है, और ज्यादातर कोशिश हमें यही करनी चाहिए जहां हमारा माँ मौसूला बनाकर काम निकल रहा हो, माँ मजदरिया या बाकी, उसकी भी आगे डिटेल में जाने की फिलहाल इस स्टेप पे जरूरत नहीं है। वो मैंने थोड़ा आपसे शेयर किया कि इस तरह के तर्जुमे मिलेंगे। तो उन्होंने इस माँ को मुख्तलिफ एंगल से लिया है। फिर किसी ने इसको माँ को अगर उन्होंने मजदरिया बनाया है या जरफिया मजदरिया, तो इस माँ और इसके बाद वाला जो सिला है, इनको इत्ताकू के मुतल्लिक किया किसी ने क्या किया कि इसको एक यहाँ पे नया फेल माजूफ मानकर इसको उसका मफूल बिही बनाकर इसको पहला मातूफ बनाया इत्ताकू का। तो ये सबके मुख्तलिफ है, लेकिन ये सादिया जी जो कर रही है ये सबसे आसान है। ठीक हो गया जी, इस्तिताअ तुम का बता दो। मैम इस्ततातुम, त्वा वाव और आइन इसका मादा है, और इस्तफाल बाब है, और इसका फाइल ये अंतुम हो गया, माजी का सीगा है। और शाबाश शाबाश। इसका इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल फाइल बाकी कंपेयर करके बताती हूँ। मुख्तलिफ अब्वाब में इसके डिफरेंट माना है। बस आप ये बता दें कि ये माँ मौसूला और ये जो जुमला फेलिया आपने बनाया है जिसका अंतुम इसका आप बता सीगा। रही हैं, ताजमीर, ये इसकी, इसका फाइल, ये इसका सिला, मौसूल सिला मिलकर इन्होंने हाल बना दिया। तो इत्ताकु फेल इसके अंदर। अच्छा, इसका अभी फेल ये और जो फेल इसका है और अल्लाह लफ्ज जलाला इसका मफूल भी है, तो इसका जो फाइल है अब वो किस तरह से होगा? इसका फाइल असल में जुल्हाल, मस्तता तुम हाल, जुल्हाल अपने हाल से मिलकर फिर वो इसका फाइल बनेगा। तो इत्ताकु फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला बनेगा। जुमला फेल है। आप इसका तर्जमा करें, फिर एक मिनट जरा रुकिएगा, मैं कुछ इसका डिक्शनरी से शेयर करना चाहूंगी, करें। तो अल्लाह से डरो जितनी तुम इस्तिताअत रखो। शाबाश, ठीक है। आपने जितनी के साथ किया, मैंने कहा ना इसका बहुत बहुत मुख्तलिफ तरह से आपको मिलेगा, सब ठीक है। कि जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, जितनी तुम ताकत रखते हो, ये सब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली इसको देखें, अगर आप डिक्शनरी से देखें तो कौ वाओ आइन, ये बा फातहा से आए तो सिंपल होता है ताबेदार होना, फरमाबरदार होना। बाबी फाल में आ जाए तो किसी की फरमाबरदारी करना, इताअत करना, ये जो हुक्म आना, जिसे आप हमारे यहाँ हुक्म आना के साथ अक्सर इसका तर्जुमा किया जाता है।
یہ اگر باب تفعیل میں چلا جائے طوع یطوع تو اس میں ہوتا ہے کسی کو فرما بردار بنانا، کسی کو کسی کام کے لیے راضی کرنا. اگر باب تفاعل عین کے اوپر جو شد ہے اس میں چلا جائے تو اس کا ہوتا ہے تکلیف اٹھا کر، کیونکہ اس میں تھوڑی تکلف ہوتا ہے اس باب میں، تکلیف اٹھا کر فرما برداری کرنا. اس مفہوم کے ساتھ یہ نفلی عبادات انجام دینے کے لیے آتا ہے. ہمارا باب ہے آج کا باب استفعال. اس میں فرما برداری کرنے کے لائق ہونا. ایکچولی یہ لفظ ہمارے یہاں میرا خیال ہے اردو پڑھنے والی اسٹوڈنٹ جانتی ہے کہ میری استطاعت ہے یا نہیں ہے، میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں. تو اس کو تھوڑا سب سمجھتے ہیں، کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت یا قدرت رکھنا، یہ ہے اس کا معنی. باقی یہ کہ بہت ہی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی بھی معاملہ کرنا ہے. اور یہاں پہ تو ایک خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ جب مال اولاد یہ سب چیزیں تمہاری دشمن ہے تو ان حالات میں کس طرح اس کا حل بتائیں گے. انشاءاللہ ڈرتے رہو. اللہ کا ڈر بہت سارے مسائل کا، کیونکہ ہر مسئلے کا حل ہے. اللہ کا ڈر ہی بیسک مین چیز ہے. اور اتنی پیاری بات ہے. ایک اور قرآن پاک میں ایک آیت اتری تھی، اس میں تھا کہ اتنا ڈرو جتنا کہ اللہ کا حق ہے. لیکن ایکچولی اس کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد آئی. میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا چاہ رہی، بس اتنا ہی کہ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، کون کتنا کیپیبل ہے. تو ہر ایک کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. جس میں جتنی ہے، اور یہ انسان کو پتا ہوتا ہے، اندازہ اللہ کی طرف سے ہمارے اندر ایک میٹر ایسا سیٹ ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کہاں پہ میری بس ہوئی ہے، میں کہاں پر تھکی ہوں. اگر وہ یہ کہتا ہے، وہ جلدی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے نہیں میری استطاعت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے. لیکن اگر جنرلی اس نے کوشش کی اور کہیں جا کر وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی استطاعت ختم ہو گئی، اس کی طاقت ہمت، تو اس کا بالکل اس پہ مواخذہ نہیں. آپ اسلام کی بیوٹی دیکھیں، اتنا ڈرو کہ جتنی تم میں طاقت ہے. سب کی مختلف ہے. کہیں نہ کہیں انسان ہو سکتا ہے مجبور ہو جائے، کمزور پڑ جائے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہو بیسیکلی. تو یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے مستطاعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو یا استطاعت رکھتے ہو. یہاں تک کلیئر ہو گیا. آگے ذرا جلدی اس کو کرتے ہیں. وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا. ان تینوں کو کس پر عطف کریں گے؟ میم یہ اتقوا پر عطف ہو جائیں گے، جملہ کیا فعلیہ. بات. اتقوا فعل معطوف علیہ، باقی تینوں جملہ فعل. یہ ہر فعل، اسمعوا جو ہے اس کو آپ معطوف اول کہہ دیں، اطیعوا کو معطوف ثانی، انفقوا کو معطوف ثالث. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جنہوں نے مستطاعتم کو ایک محذوف فعل کا مفعول بھی بنایا، انہوں نے اس فعل کو معطوف اول کہا. لیکن آپ جو کر رہی ہیں بہت آسان اور سمپل ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اسمعوا پہلا معطوف، اطیعوا دوسرا، انفقوا تیسرا. اب انفقوا کے بعد خیرن لی انفسکم کا بھی بہت مختلف رائے ہیں. کسی نے انفقوا سے جوڑا، کسی نے یہاں پر پھر کچھ محذوف مانا، کیونکہ یہ جو منصوب والے اسماء آ جاتے ہیں نا، پھر ان کا تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے. اکثر ان کا کچھ نہ کچھ ایک محذوف ہوتا ہے، یہ کہیں کبھی مفعول مطلق بن رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. فی الحال اسمعوا، اطیعوا، انفقوا، ان تینوں کا عطف ہو گیا اتقوا پر. آپ یہ دیکھیے کہ سننے کا کتنا تعلق ہے قرآن پاک میں. آپ کو اکثر مقامات پہ زیادہ تر سننا جو ہے یہ دیکھنے اور باقی چیزوں سے پہلے ملے گا. کیونکہ اگر ہم غور سے کسی چیز کو سنیں گے تو اس کا اثر ہم پر مختلف ہوگا. اگر آپ فرض کریں کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں ساتھ میں، یقیناً مجھے اندازہ ہے، میں خود بھی ہاؤس وائف بھی ہوں، میں ورکنگ لیڈی بھی ہوں، کہ ساتھ اور کام بھی بعض دفعہ دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن توجہ بڑھ جاتی ہے. جب کنسنٹریشن کم ہوتی ہے، کوئی بات غور سے نہیں سنی، کہیں مس ہوگی، وہ بات اثر نہیں کرے گی اس طرح سے جس طرح سے کہ پورے کوئی کان لگا کر غور سے سن رہا ہے. کیونکہ سننے کا بہت زیادہ ہمارے اسلام میں اس پر بہت فوکس کیا جاتا ہے. غور سے سننا، اس کا ہم پر اثر بدل جاتا ہے. تو اسمعوا آ گیا، اس کے بعد اطیعوا. اور اطیعوا ہم اس کو دیکھ چکے ہیں پہلے. ان سب کا واو ضمیر یا آپ کہہ لیں کہ یہ انتم ان کا فاعل ہو جائے گا. یہ سب فعل امر ہیں اور یہ سب ان کا اتقوا پر آپ عطف کر دیں. اطیعوا آ گیا اور پھر انفقوا آ گیا. اب یہاں پر جو انفقوا ہے، اس آیت میں انفقوا آیا ہے، یہ بھی خرچ کرنا ہے، اور یہ ہر طرح کا خرچ کرنا ہے. اس پہ اپنی ذات پر بھی کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ بھی کرنا ہے، رشتہ داروں پر بھی، یتیموں، مسکینوں، یہ جو مسافر، جتنی جہاں جہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ ہر طرح کا جو انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اس میں آتا ہے. انفقوں میں ہر طرح کا خرچ کرنا آتا ہے.
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اگلی آیت میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان تقریدو. اب وہاں پر اور اس کے خرچ کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جا کر مجھے یا ٹائم نہ ملے یا میرے ذہن سے نکل جائے, تو میں ابھی آپ سے تھوڑا شیئر کر دیتی ہوں. اس نے بھی خرچ کرنا ہے, اس کی اپنی ڈیٹیل ہے. کوشش تو میں کروں گی جب آیت پڑھ رہے ہوں تو اس وقت جب ڈسکس کریں تو وہ زیادہ سمجھ آتی ہے, لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے انفقو یہاں پر بھی کہا ہے, تو پھر ایک اور لفظ تقریدو دوبارہ سے اگلی آیت میں کیوں آیا؟ ہر طرح کا خرچ کرنا اس میں شامل ہوتا ہے. تو تقریدو میں بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, اسپیشلی اللہ کے راستے میں خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور اس کی نیت صرف اللہ سے اجر لینے کی, اللہ سے ثواب کی امید ہو. اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا نہ ہو. اس میں جس پر آپ خرچ کر رہے ہیں, اچھا خرچ کرنے کا طریقہ بھی پراپر سنت کے مطابق ہو, اور جس پہ خرچ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو کوئی احسان نہیں جتلانا, کوئی اس کو اذیت نہیں دینی. تو یہ آتا ہے بیسیکلی قرضاً حسنہ میں. ٹھیک ہے جی, اس میں اور اس انفاق میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر بعض لوگ اس سے مزید ڈیٹیل میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قرضاً حسنہ, یہ اصل میں وہ اسپیسیفک خرچ کرنا ہے جو کہ اسلام دین کے راستے میں کسی طرح خرچ کیا جائے. چاہے کوئی پڑھ رہا ہے, کسی کو پڑھایا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹس ہیں مدارس کے, کسی طرح, یا جہاد پر کسی اسپیسیفکلی اسلام کے لیے انہوں نے اس کو اس سے ریلیٹ کیا, جہاد سے, اس دین اسلام سے. ٹھیک ہے, پھر آگے اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں. تو بیسیکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اچھا قرض ہے. اس میں اب دیکھیں, اس میں ایک اور بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی دے رہے ہیں, خود ہی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, اور پھر آپ کو اجر دے رہے ہیں اس میں سے. اچھا, یہ انشاءاللہ اس آیت میں جائیں گے تو آپ اس کو میں کوشش کروں گی میرے ذہن سے نکلنا اور بھی ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے. اب اس انفقو میں سب ہر طرح کا خرچ کرنا آ گیا, یہاں تک اگر ترجمہ کرتے ہیں, پھر آگے خیرن پہ چلتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کیسے لے کے چلیں گے. اور واسمعوا واطیعوا وانفقوا, اور سنو اور اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو اور خرچ کرو. شاباش. اب کسی نے نا خیرن کو انفقو کے ساتھ اس کا مفعول بھی بنایا, لیکن میں نے ایسا ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا, یقیناً ہوئے ہوں گے, اور انہوں نے لی انفسکم کو انفقو کے متعلق کر دیا. تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ انہوں نے خیرن کو جب مفعول بھی بنایا تو اس کو مال کے معنی میں لیا. آپ دیکھیے گا قرآن پاک میں خیر مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے, مال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو تب اس کا معنی ترجمہ اس طرح سے ہو سکتا ہے جو میری نظر سے نہیں گزرا, اور تم مال اپنے لیے خرچ کرو. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر جو رائے ہے وہ بہتر بھی یہی, اور ترجمے جتنے میں نے دیکھے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ انفقو الگ ہے اور خرچ کرو. آگے خیرن لانفسکم کو, لی انفسکم کو متعلق کیا خیر کے, خیرا کے, اور پھر ان دونوں کو ایک یہاں پہ محذوف فعل ہے, یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے, یکن مان لیا انہوں نے. آپ کہہ دیں کہ اس کی خبر بنا دیا, یا اچھا کسی محذوف فعل کا آپ کہہ دیں کہ اس کا کچھ اس سے ریلیٹڈ اس کا مفعول بھی بنا دیا, اس کا پیچھے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا یہ, اور ترجمہ زیادہ تر اسی طرح سے کیا گیا. اس سے پتہ چل رہا ہے اس کو انفقو کے ساتھ نہیں جوڑا گیا, کسی نے اگر اٹیچ کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سادی سی. اب ترجمہ کریں, میم یہ جیسے آپ بتا دوبارہ رہی سے ہیں, کریں, دوبارہ سے کریں شروع سے. جی پوچھیے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میم جیسے آپ یہ بتا رہی ہیں نا خیر لانفسکم کو, مطلب یکونوں کے لیے وہ بنا دیں گے خبر. یکن وہ مضموم ہوگا, انفقو کے جواب میں آیا ہوگا. جی بتائیے اس کی خبر. میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہی اس کلاس میں, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں محذوف چیزوں کو بالکل نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہی. آپ پرسنلی اگر پوچھ لیجیے گا, صرف میں نے ان کو آئیڈیا دی ہے, اس کو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں دیکھیں گے, چھوڑ دیں. بس سمجھ لیں یہاں پہ کچھ محذوف ہے, کیونکہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں گی نا زیادہ تر اسکالرس کے, انہوں نے کسی نے انفقو کے ساتھ نہیں جوڑا, اس کو الگ سے کیا ہوا ہے. وہ میں آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس طرح کے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الگ سے کسی محذوف فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو ایک شیئر کیا, ٹھیک ہے, بس ترجمہ کر دیں فتقو سے لے کر یہاں تک. تو سو اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھو, اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو. خیر لانفسکم, اپنی جانوں کے لیے, تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا. شاباش, انفسکم تمہارے اپنے نفسوں کے لیے, تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ سب سے آسان ہے.
क्योंकि देखिए अनफिकुम आप खैरन को बिल्कुल इसका मफूल भी बना सकते हैं, और ली अनफुसिकुम को भी फिर आप अनफिकु के मुतल्लिक करना पड़ेगा, खैरन के साथ नहीं उसका तर्जमा बैठेगा। फिर आपको माल के माना में तर्जमा करना पड़ेगा कि तुम माल अपने लिए, अपने नफ्सों पर खर्च करो, अपने नफ्सों के लिए। तो ऐसा का तर्जमा मैंने देखा नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। किसी बहन के अगर ज़हन में आता है कि खैरन को सीधा सीधा इसके मफूल भी क्यों नहीं बना दिया गया, देखिए इस तरह से नहीं होता। किसी भी चीज को यकदम हमने उसका मुतल्लिक नहीं बनाना, मफूल भी नहीं बनाना, तर्जमा भी करके देखना है इसको। अगर आप करेंगे मफूल भी बनाएंगे अनफीकू का, फिर माल के माना में लेंगे, ठीक है, वरना ये भलाई के माना में आ रहा है। जी सादिया जी, ठीक है मैम। आपने किस तरह से तरकीब की है, आपने इसको क्या बनाया था? मैंने ऐसे ही किया है यकूनों को मानकर, लेकिन मेरे ये भी आ रहा था कि खैरन के लिए मतलब मौसूफ जो है वो माजूफ मानकर और खैरन को उसकी शिफ्ट बनाकर फिर देखिए ये वो इसका मजीद डिटेल है, वो मजीद डिटेल है। जब हमारा ये खैरिन के साथ इसका बात बन रही तर्जुमा है, नहीं या सही फिर पा रहा था। अक्सर ऐसे, जैसे पिछली इसी क्लास में वो मिसल आया था आई थिंक, मसल, हाँ मेरे ख्याल में वो भी किसी की सिफत थी माजूफ मौसूफ की। तो वो मुझे लगा कि जरूरी नहीं है, जब बात चल रही है तो हमारा काम हो रहा है, तो वो फिर डिटेल दर डिटेल फिर इतना कुछ माजूफ, और स्टूडेंट परेशान होंगे, स्पेशली न्यू कमर, ये जी भी मैम मुझको किसी माजूफ। तो तर्जुमा भी सिंपल सही रखें, नहीं है। हाँ नहीं बस सिंपल रखें इसको, ठीक हो गया जी। ये जी जो मैम। है मैं सबको बता दूं, अनफिकु पीछे इसका हो गया अतफ। खैरन जो है इसको एक माजूफ फेल के लिए मफूल भी बना लें, और ली अनफुसिकुम को आप खैरन के ही मुतल्लिक कर दें। ये इसमें तफदील है, उसके मुतल्लिक ये हो सकता है, ये देखने में नहीं लग रहा लेकिन ये है। शर और खैर जो होते हैं ना, ये उस वजन पर है। एक्सेसिव यूज की वजह से इनके ये थोड़ा सा चेंजेस लेकर आए हुए हैं अरब। तो ये दोनों मिलकर, यानी कि ली अनफुसिकुम को खैर के मुतल्लिक करके, फिर इन दोनों को माजूफ फेल के अब वो कौन है क्या है छोड़ दें, लेकिन आप यकूनू ना कहें, फिर आपको यकुन कहना पड़ेगा, क्योंकि अनफिकु के जवाब में वो आ रहा है। तो फेले अमर के जवाब में जब आएगा तो वो मजूम होकर आएगा। तो खैरन ली अनफुसिकुम को आप उस माजूफ के मफूल भी बनाकर अलग से तर्जमा करें, वो ज्यादा बेहतर है कि तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा, ये अच्छा है। और अगर किसी जी ने इसको मफूल भी बनाना है तो वो फिर माल के माना में करना पड़ेगा, और फिर अनफुसिकुम को अनफिकु का मुतल्लिक बनाना पड़ेगा, खैर के साथ तर्जुमा नहीं बैठेगा। चलें जी, माशाल्लाह आज तो बहुत स्टूडेंट सुनाना चाह रही हैं। सादिया जी आपसे इतना ही सुनते हैं, आधी आयत किसी और से सुनते हैं, ताकि सब बहनों की बारी आ जाए। ठीक है अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। शमा जी आ गई हैं, शमा जी आप आए। ये जो इस अस्सलाम आयत का वालेकुम। हिस्सा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये जो आधी आयत रह गई है आप इसे कर दें। यस मैम। जो वाओ। सुनाती जा रही है हैंड डाउन करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कितनी स्टूडेंट है, सबकी बारी आ जाए। थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहे मिल जाए उनको, जी करें। यस वमन, मैम। वाओ हरफे अतफ हुआ और मन इसमें शर्त है, हरफे शर्त है, सॉरी। यू का ये सॉरी दोबारा फेल। बताइए, मन क्या है, मैं कंफ्यूज हो मन गई, आपने क्या मन बोला है? शर्तिया है। जी आपने इसम बोला या हर्फ? क्योंकि अब आपने बोल लिया इसलिए मैं तो जो मेरी हुई, वरना शायद मैं इतना नोटिस ना करती। यस आपने मैम। इसको इसम बोला या हर्फ बोला, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैम ये इसम है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, जी ठीक हो जी। गया जी। वाव को आपने, अगर आतिफा किसी ने बनाया है ठीक है, नहीं तो आप इसको इस्तनाफिया भी कर सकते हैं, अब एक यस कर मैम। सकते हैं, उसमें भी हर्ज नहीं है। अच्छा जी, जी जी। मन जो है इन्होंने कहा शर्तिया, पहले तो मैं इनसे पूछूंगी इन्हें कैसे पता चला। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, फिर उसकी मैं तरकीब आपसे शेयर करती हूँ। जी बताएं कैसे पता चला आपको? यस मैम, ये शर्त या शर्त हमें इसलिए पता चला कि इसके बाद में फेले मुजारे आने वाला मजजूम है। माशाल्लाह, शाबाश। ये क्या था असल में, वाओ काफ या बाब दौरा बा से क्या था? ये था यू का या, ये फेल यू, मुजारे मजहूल असल में है। ये था, हाँ मजहूल है, असल में यू की था, फिर जब मजहूल जी। बना तो यू का बन गया। या लिखी यस। हुई थी, और उसके पहले वाले लेटर पे जो खड़ी जबर खड़ा ली, जो भी बोल रहे हैं आप इसको। तो जब यस ये मैम। मजजूम करने वाला कोई भी हर्फ आ जाए, या इस तरह से, ये जैसे ये मैंने आपसे कहा ना कि उसका अमर बनाया जाए, जैसे ये अब ये मन शर्तिया आ गया, ये भी मजजूम करता है, तो ये मजजूम होकर कैसे पता चलेगा इनका, इन अफाल का, कि ये मजजूम हुए? या गिर जाती है, या नाकिस गिर। याई की बात हो रही है, शाबाश। तो यू का यू था, यस अगर जब मैम। मजहूर बनाए। मैं एक बार फिर बता दूं, मेरी तसल्ली नहीं हो रही, पता नहीं किसी बहन को कंफ्यूजन ना हो रही हो, दोबारा से सुन ले। वाओ काफ या मादा है, बाब दौराबा है, ये था यू की असल में।
कि मजहूल बनता है तो आइन कलिमा जबर वाला हो जाता है, अलामत मुदारा मुदारे तो पेश वाली है। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, Yes. इसको इसकी ओरिजिनल पहले बताएं, मैं पेश क्यों बोल रही हूँ मैं इसके नॉर्मल वाले में, जरा इसको ओरिजिनल बताएं जरा। मैम ये ओरिजिनल होगा, रू तो पेश मैम ये इसलिए आई आप ना कि मजहूल में ही मुदारे पूछ बनाया रहे हमने, नहीं हैं। मारूफ में बताएं। मारूफ में वक़या, और इसका मुदारे का बताएं, मुदारे का या मारूफ बताएं। मुदारे का मारूफ होगा का यू, यऊ की यू, बात दौरा बात से है ना, सॉरी, हाँ जी जी, यऊ की यू, ठीक हो गया, यस शाबाश। और आपको पता है ना कि ये जो वाव जिनके 3 अब्वाब ऐसे हैं, आ, जिनके शुरू में इनके वाव आती है, तो जब उनका मुदारे बनता है तो वाव गिर जाती है। यस मैम। किसी बहन को पता है इस कायदे का? इसको भी देख लेते हैं, कुछ बताएंगे कौन से 3 अब्वाब हैं वो? मैम एक तो बाबे इफ्तियाल है। अच्छा, कोई और बहन बताना चाहेंगी? मिसाल वावी मुझे आवाज नहीं आ रही, बहुत कट के आ रही है। अच्छा चलिए दोबारा से सुनो। देखिए पता है कि एक एक लफ्ज का हमें पता हो। इन्होंने कहा मजहूल है, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, और इन्होंने कहा कि ये मजजूम है, इस पे या गिरी हुई, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि असल में क्या था। अब ये है वाओ काफ ला बाब दौरा बा से, बाब दौरा बा उन 3 अबवाब में से एक है, जिनके अगर आप इसमें ऐसा माना लेकर आए जिसके शुरू में वाव आ रही हो, जिसे मिसाल कहते हैं, मिसाल वावी, तो जब इसका मुदारे बनेगा तो वाव गिर जाएगी। तो मैं आप पहले मुझसे असली सुनिए। असली है वाकाया यऊ की यू, वो बनेगा वका यकी, वाव गिर जाएगी यकी। लेकिन जब मजहूल बनाएंगे तो वाव दोबारा से लौट आती है, तो फिर क्या बनेगा? यू का यू। तो ये जो अलामत मुदारे है पेश वाली, ये बता रही है कि ये मजहूल है। अगर मारूफ नॉर्मल हो उसमें पेश नहीं आएगी, उसमें क्या आएगा? उसमें आएगा वका यकी, या के ऊपर जबर होगी। क्लियर है? अब किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, इससे ज्यादा मेरी पॉजिटिव रिवाइज करवाना। लेकिन ये चीजें हैं कि इनको क्लियर रखें, ये बड़ी कंफ्यूज करती हैं, तर्जुमे इनसे बदल जाता है सारे का सारा। फिर से सुने, वाव काफ या मादा बा दौरा बा, इसमें जब नॉर्मल होगा तो वका यकी बनेगा, और मुदारे में वाव गिर जाती है, क्योंकि ये उन 3 अवाब में से एक है दौद, जिनका जब आप मिसाल वावी वाव वाले, जिनमें वाव फा कलिमा पर होता है, जब वो आते हैं तो मुदारे बनाते वाव गिर जाती है। ठीक हो गया जी? तो ये असल में था वका यकी। लेकिन जब मजहूल बनेगा तो जिन्होंने वजन याद किए यू फालू वो उस पर पुट कर लें, जिन्होंने मुदारे को पकड़कर उसके मारूफ को पकड़ कर जो मजहूल बनाती है वो उस तरह से कर लें। तो वो यू का यू बन गया, और यू का यू में फिर वो यू का बन जाता है। लेकिन यहाँ पे या गिर गई क्योंकि मन, ये जो है ये मन शर्तिया है, ये मजजूम करता है, जाजिम है। तो जब ये मजूम, कैसे पता चलता है इनका अफाल का? उनमें अगर तो या हो तो या गिर जाती है। ठीक है, इसका बस इतना ही। इसकी मैंने आपको बताया था जब मुत्तकी वाला वो बाब इख्तियाल वाला पढ़ा रही थी, इसके 2 डिमांड करते हैं मफूल, जो बाब बाब दौरा बा से आता है। 2 मफूल, किसको बचाया, किससे बचाया। तो ये जो 2 मफूल डिमांड करते हैं जो अफाल, जब वो मजहूल उनका बनता है, तो जो पहले वाला उनका मफूल होता है वो उनका नाइबुल फाइल बन जाता है, और जो दूसरा उनका मफूल होता है वो मफूल ही है। तो ठीक है, अब बताइए है मजजूम है, इसका फाइल बताएं, यस मैम। नाइबुल फाइल बताएं। यस मैम, मजहूल क्या है? इसका यस मैम, इसका नाइबुल फाइल इसी के अंदर है हुआ। ठीक हो गया, शाबाश। अब जो शुहा नफसी ही है, जो पेचीदा मुरक्कब इजाफी है, इसे क्या बनाएंगे? ये मैम इसका मफऊल बनेगा। मफूल बिही सानी कहेंगे, ठीक है, चाहे कि वो इस वक्त यस एक ही मैम। मफूल आ रहा है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि पहले वाला नाइबुल फाइल बन गया मजहूल बनाते हुए, यस मैम। दूसरा मफूल बिही ही बनकर आ रहा है। और पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो
या सिंपल मुरक्कब इजाफी हो, उसके एराब का कैसे पता चलता है? उसका इराब का मुजाफ से पता चलता उसके है। एराब का मुदाफ से पता चलता है। आप बात, अच्छा एक छोटा सा कायदा याद रखें, ये जो मन होता है, मन जो ये लफ्जन वाहिद होता है, लेकिन बाज दफा मानवी तौर पर ये जमा भी आता है। वो लिखा मन नहीं होगा, फाइल भी आपको वाहिद ही नजर आ रहा होगा, लेकिन आप उसका तर्जमा जमा के साथ भी अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसमें अब वाहिद के साथ भी कर सकते हैं, जमा के साथ भी। जब तर्जमा करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज को मद्देनजर रखिएगा। अगर किसी ने जमा के साथ किया तो उसने मानवी तौर पर किया मन को, किसी ने अगर वाहिद के तौर पे किया कि जो बचा लिया जाए वाहिद, तो उसने लफ्जी तौर पे किया। दोनों ठीक है, ठीक हो गया जी जी। तो शुह क्या होता है? शीन हा हा, ये बेसिकली ये बुखल को कहते हैं, और इसको लालच भी इसका किया गया। हमारी डिक्शनरी में लालच के तौर पे इसका तर्जुमा किया गया। आप समझ लें ऐसा बुखल जिसमें लालच भी शामिल होता है, दिल की तंगी समझ लें, नफ्सी ही, ये इसका मफूल भी हो गया। तो यू का फेल अपने, चूंकि फेल मजहूल है तो अपने नाइबुल फाइल हुआ और मफूल बिही सानी शुह नफ्सी ही से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या जी बना? मैम, ये शर्त, जुमला शर्त बना। ये शर्त बना। अब इसके बाद वाला जवाब शर्त होगा, फिर दोनों मिलकर जुमला जी शर्तिया बनेंगे। अच्छा यहाँ पर मुझे एक तो आप बताएंगे कि जवाब शर्त का कैसे पता चला, दूसरा आप तरकीब शेयर करना चाहेंगी मन शर्तिया की, अगर थोड़ी सी आसान सी अगर आप स्टूडेंट से शेयर कर दें तो। अच्छा देखें, ये जो मन शर्तिया होता है ना, इसकी तरकीब बहुत तरह से की जाती है। इसके बाद जो आ रहा है वो इस्म आ रहा है, क्या आ रहा है, फेल है, लाजिम है, मुतद्दी है, ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंपल इस तरह कर लेना कि मन शर्तिया को मुब्तदा बना लें और शर्त और जवाब शर्त दोनों को मिलाकर आप यस खबर मैम। बना लें तो किफायत कर जाए। बस यस ये मैम। आप सिंपल एक रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी जी तरकीब जी। मुख्तलिफ तरह से की जाती है इसके बाद वाले को देखते हुए। वो लाजिम है, मुतद्दी है, अगर वो मुतद्दी है तो और उसका मफूल आगे आना चाहिए, जो नहीं आया तो ये मफूल भी बन सकता है। और अगर उसके बाद कोई काना वगैरह आ रहे हैं तो ये उनका कुछ ना कुछ रिलेटेड बन सकता है। ये सब कुछ है, लेकिन इतनी डिटेल में जाने की इस क्लास में जरूरत नहीं है। आप बस सिंपल, और अगर किसी को नहीं है ये याद हो रही, नहीं समझ आ रही इसकी तरकीब, तो आप छोड़ दें, बस आप तर्जमे पे गौर करें और वो बैठ रहा है आराम से तर्जमा करें। यस मैम। और जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए जाएं। बचा लिए जाएं, शाबाश, आप कर रही हैं जमा के साथ, ये भी जी। ठीक है। और अगर कोई करे कि बचा लिया जाए तो लफ्जी तौर पे वो भी ठीक है। ठीक हो गया जी। यस जवाब मैम। शर्त बताए। जवाब शर्त फा उलाइका से है, क्योंकि यहाँ पर फा से हमें पता चल रहा है ये फा जजाइया है। उलाइका मुब्तदा हुआ, इसमें इसमें इशारा। और हम, ये जमीर फसल है। अल मुफलिहूना, ये इस्मुल फाइल होकर ये बनेगी इसकी खबर उलाइका की। माशाल्लाह, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना, ये जो ज़मीर फसल होती है ना, ये मुब्तदा से मैच करती हुई एक ज़मीर बीच में आती है, मुब्तदा और खबर के बीच में। अगर ये ना हो तो आपको किसी को मुश्किल हो सकती है बाज़ दफ़ा पहचानने में कि ये मुब्तदा खबर है। हम हो सकता है हमको कोई मुरक्कब समझ बैठे हैं और तर्जमा बदल जाए, तो ये बीच में इसलिए भी आती है, फिर इससे हसर भी पैदा हो जाता है। और इसकी तरकीब भी दो तरह से की जा सकती है, जैसे इन्होंने की है, ये सबसे आसान और मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई इस तरह से करना चाहे कि उलाइका मुब्तदा और इसकी जो खबर है उसको फिर जुमला इसमिया बना दे, हम मुब्तदा अल मुफलिहून ये खबर, और जुमला इसमिया को उलाइका मुब्तदा की खबर बना दे, वो भी ठीक है। लेकिन जैसे इन्होंने की है ज्यादा आसान। और अब इस पे, इस जो जुमला इसमिया बन रहा है इस पर फा जजाइया फा राब्ता क्यों आया? क्योंकि मैम ये यहाँ अच्छा पर। फा, जी जी, आप बताइए। आपको वो टेबल याद है? आप माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट है। आपको वो टेबल याद है जिसमें फा जजाइया फा राब्ता आता है, उसमें एक जुमला इस्मिया फेले अमर कुछ नहीं वाले यस उस्तूब मैम। है, इस्तिफहामिया वाले उस्तूब है। तो उसमें जुमला इस्मिया जब जवाब शर्त बनकर आता है तो फा मस्ट होता है, फा जजाइया फा यस। राब्ता, ठीक है। यस मैम। आप माजी पर जी कभी नहीं आता, और मुदारे जी। पर 50-50 है, आ भी सकता है भी आ सकता। और अगर मुदारे पर आता है तो फिर मुदारे मजून नहीं होगा। यस इस मैम। तरह से कुछ इनके हिसाब होते हैं। तर्जुमा कर दो। तो वही लोग ही फलाह पाने वाले हैं।
माशाल्लाह, एक्सीलेंट। बस बाकी ये जो अल-मुफ्लिहून इसमें फाइल है, इसकी अलग से तरकीबें होती हैं, हमारी क्लास में हम नहीं डिस्कस करते। मुझे लगता है कि बस जितनी हम कर रहे हैं ना इतनी काफ़ी। अब हमने उसके मैसेज को पिक करने की कोशिश करनी है। तो इस क्लास में तरकीब नहीं की जाती, लेकिन मैं कभी कभार आपके गुजारती हूँ कि आपको अंदाजा हो, जिनको बहुत को तो अंदाजा होगा, पुराने स्टूडेंट्स को, नई वालों को भी पता हो कि ये जो होते हैं ना अस्माए मुश्तक्कात, ये अगर बाज दफा इनका फाइल लेते हैं, फिर इनके बाद इनका मफूल भी हो सकता है, मुतल्लिक भी हो सकता है, तो प्रॉपर ये अपने जुमले बनकर फिर कुछ बनते हैं। लेकिन ये पूरे जुमले नहीं होते, ये एक तरह के शिब जुमले होते हैं। काइंड ऑफ शिबू बोलते हैं, शिब बोलते हैं, बाद शबा शिबा, पता नहीं, बहुत मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बस बारकल्ला फीक, माइक म्यूट रखिए, एक दफा मैम मैं आप तर्जमा करती हूँ। मैम आपसे एक क्वेश्चन था, यहाँ पर ये शुहा इसमें मस्दर के उसमें आता है फॉर्म में? इसमें मजदर, जी। आप इतनी मुश्किल क्यों कर रही हैं क्लास को? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, छोड़ दीजिए। ओके ओके, हाँ, मैं इसमें सॉरी। मजदर और इसमें मजदर में भी फर्क होता है, मैंने इस क्लास जी में जी, डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ओके मैम, चले जी, अब मुझसे तर्जुमा जज़ाकल्लाहु सुनिए। खैर। जी, तर्जुमा सुनिए, फिर हाफिज अब्दुल सलाम साहब का देखते हैं, फिर अगली आयत की तरफ चलते हैं। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो या डरते रहो, जितनी तुम इस्तिताअत रखते हो, जो जितनी तुम ताकत रखते हो, और बाकी बहुत तरह से जहां तक तुमसे हो सके ना तुमसे हो सके। इस माँ के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ तरह से तर्जुमा किए गए हैं। उन्होंने किसी ने इस माँ को, किसी ने कुछ, हमने सिंपल किया, और हमने इसका किया कि बस अल्लाह से डरो डरो जितनी तुम ताकत या इस्तिताअत रखते हो। हमने सिंपल कर रहे हैं, बाकी सब भी ठीक है, लेकिन जहन में रहे उन्होंने माँ को मुख्तलिफ एंगल में लेकर जाकर तो अकॉर्डिंगली तर्जुमा किया। और सुनो, और हुक्म मानो, और खर्च करो तुम्हारे अपने लिए, ये तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। आगे वह मई यू का यहाँ पर क्या है? अब ये अलग से जुमला आप चाहे बना लें, चाहे पीछे आप इसको अतफ कर दें, इसमें शर्त और जवाब शर्त मिलकर, जो अपने नफ्स की तंगी, नफ्स के बुखल से बचा लिया जाए। मैंने वाहिद किया है, आप यूं भी कर सकते हैं। और जो अब नफ्स के बुखल से बचा लिए जाएं, दोनों ठीक है। मैंने और मान दोनों तरह से किया, आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। वही लोग ही के साथ, इसलिए कि मसला मारफा होती है तब भी हसर पैदा हो जाता है, और यहाँ पर खबर भी मारफा है, और ये ज़मीर फसल अक्सर आती है इसी तरह से, जब मारफा खबर हो, वो जरा कभी तर्जमा फर्क होता है ना। जुमला इसमिया का तर्जमा करेंगे तो बीच में एंड पर है और है लेकर आएंगे, मुरक्कब में नहीं लाएंगे। मुरक्कब में होना था ये फला पाने वाले, ज़मीर फ़स्ल आई, तो अब हम इसका प्रॉपर जुमला इसमिया की तरफ कर रहे हैं। और ये कर लें या वो कर लें, दोनों तरह से ठीक है। अब आपको पता नहीं, इशारे भी एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं, फिर करीब को दूर से, तो इसलिए ये सब ठीक होते हैं। तो अब इसका फाइनल क्या तर्जुमा है? तो मैं क्यों कह रही हूँ? फा जजाइया, फा राबता की वजह से। तो वही लोग फलाह पाने वाले, फलाह कामयाबी की मैक्सिमम पीक आप कह लें, वो वाली फलाह होती है। ठीक हो गया। अब इसका जी हम तर्जुमा देखते हैं हाफिज अब्दुल सलाम साहब का, फिर आखिर दो आयत बहुत सिंपल और बहुत छोटी सी है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी उनको कर लेंगे। सो अल्लाह से डरो जितनी ताकत रखो, और सुनो, और हुक्म मानो, और खर्च करो। अब ये सारे तरीके अल्लाह ताला बता रहे हैं उस फितने से बचने के लिए, जो कि हमारी, जैसे कहा कि हमारे जोज, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बीवियां हैं, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, किसी के लिए उसका हस्बैंड, किसी के लिए वाइफ, और बच्चे, और माल भी। तो माल खर्च करने से फिर वो दिल की जो तंगी है ना वो दूर होती है, और हर सदका वैसे बहुत सारी बलाओं को टालता है। तो दिल की तंगी दूर करने के ये तरीका माल खर्च करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक हो गया। और बाकी के सारे इसी तरतीब से जितनी बातें की गई हैं, इन सब की अहमियत है उस फितने से बचने के लिए। आप इसको देखें, आगे क्या है? तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। इन्होंने से इस खैरन को लेकर चले हैं, और एक माजूफ फेल क्या उन्होंने उससे रिलेटेड इसको बनाया, क्या बनाया? छोड़ दें। और जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए जाएं, इन्होंने मानवी तौर पे मन को लिया है, क्योंकि इन्होंने देखा है कि जो जवाबी शर्त है उसमें जमा आ रही है, तो इस वजह से इन्होंने ये तर्जमा किया। अगर कोई वाहिद से भी करता है लफ्ज, तो इट्स ओके, कि जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया जाए। सो इन्होंने सो किया, वैसे जवाबी शर्त को तो, और यही माशाल्लाह अक्सर तो के साथ भी करते हैं।
تو वही लोग कामयाब हैं। चलें जी, आज की आयत नंबर 17 की तरफ चलते हैं, देखते हैं अब बाकी स्टूडेंट जो सुनाती जा रही हैं आप अपने हैंड डाउन करती जाए ताकि मुझे पता चल जाए बाकी कितनी रह गई हैं, सबकी बारी आ जाए। ये हैं जी, इसमें रुकैया, आयशा, शबाना जी हैं। रुकैया जी आप आए, आपसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरी बैटरी बिल्कुल लो। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हो सकता है कि जी, स्विच, तो मैम आप मुझसे सुन लीजिए पहले। अच्छा चलें ठीक है। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है जो नई स्टूडेंट्स है ना, मैं इनको ज्यादा मौका दूं इस क्लास में। ठीक है शुमाना जी आप आ जाए। रुकैया जी आपसे फिर बाद में सुनते हैं। चलें आए जी, आयत नंबर 17। इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसनन, यहाँ पर इन जो है वो शर्तिया हो गया मैम। ठीक और है, क्योंकि तुकरिदूना फेले मुजारे मजजूम होकर आ रहा है ना, तुकरिदूना, यहाँ तुकरिदू हो गया। बिल्कुल काफ सही है, बिल्कुल सही है। काफ रा दौद बाबे फाल से, और फाइल इसका अंतुम हो गया। और अल्लाह लाम, यहाँ पर जो लाम जलाला आ रहा है अल्लाह, ये मंसूब आ रहा है तो ये मफूल भी हो गया। कर्जन शाबाश। दूसरा मफूल हो गया। तो इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसनन, ये दोनों मैम सिर्फ मौसूफ सिफत आ रही है। माशाल्लाह आपने इस मौसूफ सिफत को, ठीक है इरम जी बिल्कुल, मैं आप देखी, मैं आपको ढूंढी थी, आप मुझे नजर नहीं आई, मैंने कहा ठीक हो गया। अच्छा जी ठीक हो गया। ये जो कर्दन हसना है आपने इसको मौसूफ सिफत बनाकर तुकरी दू के लिए आपने मफूल बिही सानी बना दिया। जी वैसे मफूल मुतलक भी बना सकती हैं क्योंकि ये उस सेम, इसका जो ये मजदर है किसका, उसी फेल का, इनके उस फेल का जरूरी नहीं कि उसी फेल का हो, उस फेल के हम माना किसी और बात से भी आ सकता है, लेकिन रूट वर्ड जो होते हैं ना वो सेम होते हैं। नहीं किसी को याद रहता, नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं, आप इसको मफूल भी सानी भी कह सकती हैं। तो तुकरीदु फेल अपने फाइल अंतुम या वाव जमीर, अल्लाह लफ्ज जलाला मफूल बिही और अव्वल कह लें या खाली मफूल बिही कह लें, कर्दन हसना मफूल बिही सानी कह लें या मफूल मुतलक कह लें, सब ठीक है। इनसे मिला फेलिया होकर क्या बना? जुमला फिर मैम शर्त हो गया। शर्त हो गया, तर्जमा कीजिए। अगर तुम सब अल्लाह को कर्ज हसना दो, ठीक है, अगर अयो तुम सब अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा कर्ज, अच्छा कर्ज, ओके मैम, कर्ज अच्छा हसन। जैसे आपने किया ऐसी वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पुराने स्टूडेंट को समझ आएगी कि दो दफा तो जिक्र नहीं किया, तो बस वो कर्ज हसना एक ही दफा जिक्र किया, लेकिन उनको अरबी की इबारत समझ आ रही है। लेकिन जो बिगनर्स है ना, उनको अलग से करना चाहिए, उनको जी पता मैम, चले कि अगर तुम अल्लाह को कर्ज दो अच्छा कर्ज, जी दोबारा से जिक्र, हम भी दोबारा से कर ले, आपने भी ऐसे ठीक किया था। आगे जी, चले। अगर मफूल मुतल्लक होगा तो वो इसी तरह आप जैसे आपने बताया कि अच्छा कर्ज, तो वो मैम मफूल मुतल्लिक हो गया। जी मफूल मुतलक भी कह सकते हैं, मफूल भी सानी चाहे बना ले, दोनों तरह से ठीक है। हाँ जी आगे ठीक। चले, जवाब शर्त बताएं। युदाइफहु, ये बाद आइन फा मादा इसका है, बाबे मुफाइल ऐसे हो गया। फेले मुजारे मजजूम यहाँ हो गया ना मैम, तो ये जवाब शर्त हो गया। जी शाबाश, सब देखें, ये था दाफा युदाइफू, बाब मुफाला से दौद ऐन फा। इनकी बैटरी का इश्यू है, मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं कर रही, मैं ये इस बाब को अभी आप बहनों से ना, ये जब कर लेती है ना इसका बाद मैं आपसे इसका डिटेल से शेयर करूंगी। ये इस बात से जब आता है ना, ये दौद आइन फा, इसमें बहुत ज्यादा मुबालगा पाया जाता है। अब बाकी इस में कभी दुगना का माना होता है, कभी कई गुना का, तो यहाँ पर कई गुना के साथ ही करें, ठीक हो गया जी जी। तो ये था युदाइफू, फा पर पेश थी। अब फा साकिन मजूम क्यों हुआ, जैसे ये बता रही हैं, क्योंकि ये जवाब शर्त है ना, तो अब ये यहाँ पर जो मुदारे है वो मजूम हो रहा है। ठीक है जी। लकुम जार मजरूर मुतल्लिक फेल हो गया। ठीक है, वयगफिर लकुम, वाओ आतिफा हो गया, इसलिए पीछे जो युदाइफ हो उस पर अतफ हो रहा है। लकुम फिर से मुतल्लिक फेल हो गया। और यगफिर आइन, सॉरी गैन फारा, गफरा यगफिरु, फेले मुजारे मजजूम हो गया ये। और माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, युदाइफ क्यों मजूम हुआ और यगफिर क्यों मजूम हुआ? मैम यगफिर इसलिए मजजूम हुआ क्योंकि पीछे युदाइफ जो फेल मजजूम है उस पर अतफ हो रहा है।
शाबाश। और युदाइफ क्यों मजूम हुआ? मजूम होने की बहुत सारी वजूहात होती जी, जवाब शर्त होने की वजह से दूसरा जुमला है। ठीक है, शुरू हो। ये पता है कि ये जो, हाँ, या किसी ने अगर इस तरह से याद किया है कि इन शर्तिया, ये हर्फ होता है ना, तो शर्त के कुछ हरूफ होते हैं, कुछ अस्मा होते हैं, उनमें से कुछ जाजिम होते हैं, कुछ गैरू जाजिम होते हैं, यानी कि कुछ मजूम करते हैं, कुछ नहीं। और जो करते हैं वो दोनों हिस्सों को करते हैं, शर्त को भी जवाब शर्त को भी। इस तरह से किसी ने किया वो भी ठीक है, जवाब शर्त होने की वजह से वो भी ठीक है। और इन शर्तिया वो हर्फ है जो कि मजूम करता है। माशाल्लाह। यगफिर लकुम फेल फाइल मुतल्लिक जुमला फेल या पिछले युदाइफ वाले पर अतफ हो जाएगा, और युदाइफ फेल अपने फाइल और मुतल्लिक मफूल बिही उससे मिलकर ये मातूफ अलैह यगफिर लकुम मातूफ दोनों मिलकर क्या बने? जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त हो गया। जवाब शर्त बन गए। शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया, इसको अलग रखें, पीछे से ताल्लुक नहीं, वो जुमला मुस्तानिफा। तर्जुमा जी, कर दें। अगर तुम सब अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा कर्ज, तो वो उसको तुम्हारे लिए ज्यादा कर देगा या बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। शाबाश, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, पूरा कर दिया इसको। अल्लाहु शकूरुन हलीम। या बस कि यहाँ रुक जाइएगा, ये आखिरी जो है ना, मैं इनको बाज दफा मिला के भी तरकीब की गई, बाज दफा अलग, इनको मैं अलग नए स्टूडेंट से सुनती हूँ। जी चलें जी, ठीक। बारकल्लाह फीक। यहाँ पे थोड़ी देर बाकी स्टूडेंट जरा वेट करें, एक दो पॉइंट्स मुझसे सुन लें। एक तो मुझे दौद आइन फा का आपसे शेयर करना है, उसकी जरा देखते हैं, बहुत डिफरेंट माना में और मुख्तलिफ अफवाह में किस तरह वो आता है। कर्ज हसना का फिर सुन लें, कुरान पाक में इसका बहुत इस्तेमाल है। बेसिकली जो बेसिक पॉइंट है वो ये है, ये वो कर्ज होता है। कर्ज का तो आपको पता है ना कि किसी को जब देते हैं कि वापस उससे, जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो वापस लेने के लिए देते हैं ना, तो इसमें अल्लाह ताला थोड़ा सा इंसान की साइकोलॉजी को ज़हन में रखते हुए कि तुम मुझे कर्ज दो तो ये तुम्हें वापस मिलेगा, और ऐसे नहीं मिलेगा, ये तुम्हें कई गुना बढ़ा चढ़ा के मिलेगा। मैं भी इंशाल्लाह आपसे आयात भी शेयर करती हूँ कुरान पाक में, कहाँ कहाँ इनका जिक्र कितनी दफा किस तरह से आया है बढ़ाने चढ़ाने का। और सदकात को, कोई भी इंफाक फी सबीलिल्लाह, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कर्ज हसना बेसिक पॉइंट ये है कि ये एक वो कर्ज होता है, वो चीज़ है जो कि अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा के लिए इस नीयत से खर्च किया जाए, उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें जिसको दिया जा रहा है उस पर कोई एहसान ना हो, उसे किसी किस्म की कोई अजियत ना दी जाए। बाकी इसको फर्दर आगे उन्होंने कहा कि ये इसमें नफली सदकात भी हैं, फर्ज सदकात भी हैं। फिर जिहाद को भी लोग बीच में इसमें ले आए। फिर इसको कहा गया कि स्पेसिफिकली ये वो है जो कि किसी ने यूं कहा कि ये इस्लाम, दीन इस्लाम से रिलेटेड जो इंफाक होता है ना, तो अल्लाह के रास्ते में, जैसे मदारिस हैं या कोई भी जिहाद वगैरह पे जो खर्च किया जाता है वो सब इसमें शामिल है। फिर एक और बात है कि ये जो कर्ज है, इसके कुछ कह लें कि शराइत कह लें, कुछ कवायद हैं कि ये कर्ज बहुत अच्छे माल में से दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि पुराना रद्दी जो दिल से उतर गया हो, नहीं, ठीक है जी। खुश दिली से देना है। ये जो हसना है ना, हसना में खूबसूरती भी है, भलाई भी है, खुशी, इसकी बहुत मल्टीपल मीनिंग्स हैं और कुरान पाक में भी आपको मिलेगा, मुख्तलिफ माना में इस्तेमाल हुआ है। खुशी से दिया जाए, प्याज दिल खोल के दिया जाए। इवन इसकी एक और उन्होंने हद है कि खुद जरूरतमंद होने के बावजूद दिया जाए। खैर, ये भी एक लेवल होता है, देखिए लेवल डिफरेंट है ना, तो इसमें ये कि हर बंदे का अपना होता है। कुछ वाकई ऐसा होता है कि खुद भी जरूरत होती है, फिर भी इस लेवल पे आके किसी और को दे दे तो फिर अल्लाह ताला उसके हिसाब से मिलेगा। 10 से लेके 700 तक, किसी को दुगना से लेके 700 तक, किसी को उसकी जो भलाई नेकी सदकात का अजर है वो अकॉर्डिंगली, वो सिर्फ अल्लाह को पता है किसने किस नीयत, किन हालात, किन सिचुएशन में दिया, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है। फिर जिस कर्ज के अंदर ये खूबियां होंगी, अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा कर कर्ज देने वालों को वापस भी करेगा। और फिर यही नहीं कि वापस करेगा, अपनी मगफरत से भी नवाजेगा। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं बख्श दूंगा। तो अब इसमें आगे अल्लाह ताला की इतनी सिफात, इस सूरा में बहुत ज्यादा सिफात अल्लाह ताला की आई हैं। और बस ठीक है। अच्छा, फिर इसको जब सिफात में आते हैं तो वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। शकूर का लफ्ज आ रहा है, शकूर जब हम इंसानों के लिए आता है तो हम, हमारा माना और होता है। जब अल्लाह ताला के लिए आता है तो उसका मतलब होता है कदरदान। उससे बड़ा कदरदान आप किसी को नहीं पाएंगे। अगर आप छोटी सी भी कोई चीज देती हैं लेकिन आपकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए है और आपके पास उतनी ही थी, देखिए अल्लाह को पता है ना, एक शख्स 1 लाख में से 100 रुपया दे रहा है और एक 1,000 में से 100 दे रहा है, तो सब उसके इल्म में सब है, किसी सब जानता है।
تو وہ پھر نیت کا بھی پتہ ہے کون کس نیت سے دے رہا ہے, اللہ کے لیے دے رہا ہے, دکھاوے کے لیے دے رہا ہے, کسی فائدے کے لیے دے رہا ہے, سب اس کے علم ہے. لیکن وہ اتنی قدر کرتا ہے کہ اگر کوئی واقعی خالص اخلاص سے اس کو دیتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی کھجور کو بھی بہت پہاڑ کے برابر اس کا اجر اس کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو شکور میں یہ آ گیا. حلیم جو ہے, حلیم کی اپنی بہت ڈیٹیل ہے. بیسیکلی حلیم ہوتا ہے ہمارے یہاں بردبار کہتے ہیں تحمل والے کو, کہ جو اگر کوئی اس کو غصہ آیا ہے تو وہ بھڑک نہ اٹھے. ٹھیک ہے, باقی اس کی آگے فردر اور بہت ساری ڈیٹیل ہے, صرف غصے میں نہیں, یہ خوشی کے موقع پر بھی, پریشانی غم کے موقع پر بھی, کسی نے تکلیف دی ہے, کسی نے انسلٹ کی ہے, کسی موقع پہ بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہونا, کنٹرول میں رہنا ہے, لمٹ میں رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے انسانوں نے بھی کوشش کرنی ہے. دیکھیں اللہ کے لیول کی تو نہیں ہو سکتی, لیکن وہ صفات اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے کسی نہ کسی صفت کو. اور اس میں پھر حلیم میں یہ کہ انسان میں ٹھہراؤ ہو. وہ فوراً کوئی خوشی کی خبر ملی ہے تو بہت جلدی سے جلد بازی میں کوئی چھوٹی حرکتیں کم ظرفی والی نہ کرے, اور کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً گلے شکوے نہ شروع کر دے, فوراً کوئی اس قسم کی نہیں, بڑے بیلنس طریقے سے رہنا ہے. اور آپ لوگوں نے شاید آپ کے علم میں وہ حدیث ہوگی جس میں ایک جو گروہ آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو ان میں سے ان کے جو سردار تھے, مسلمان کی بات ہو رہی ہے, تو وہ باقی سب جلدی ملنے آگے, وہ ذرا دیر سے آئے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, دریافت فرمایا کہ آپ دیر سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ وہ نہا دھو کے کپڑے بدل کے تسلی سے ملنے آئے. تب اللہ تعالیٰ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دو خوبیاں جو آپ میں ہیں جو بہت پسند ہے, اس میں ایک یہ بھی خوبی تھی, یہ جو ہوتا ہے نا ذات میں ٹھہراؤ, یہ انسان کی شخصیت کو بھی بڑا خوبصورت اٹریکٹیو کرتا ہے, وہ خود بڑے سکون میں رہتا ہے. ذرا سی کوئی پریشانی آئی, غصہ آیا, فوراً ریئیکٹ نہ کریں. اور یہ میں پھر اپنے اسی کانٹیکس میں بات کروں گی کہ ہم خواتین, ہم پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں گھر میں, تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کئی فرض کریں, اکثر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے جیسے گرمی کا موسم ہے, یا کوئی لائٹ گئی ہوئی ہے, یا کوئی ہماری کلاس ہے, کوئی بیچ میں کوئی فیملی آتی ہے, تو ہم کاٹنے کو بھی دوڑ سکتے ہیں, یہ ہم سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہے. ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہے, کسی طرح سیکھیں, ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے سیکھیں گے. یہ جو ٹھہراؤ ہے نا, اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں ہیں. حلیم کا مطلب ہے وہ فوراً وہ پکڑ سکتا ہے, اس کے باوجود نہیں پکڑتا وہ ہم بندوں کو, ہمیں ڈھیل دیتا ہے. اور ہم بندوں کا کیا ٹھہراؤ ہونا چاہیے ہمارے اندر, ہمیں خوشی, غمی, پریشانی, غصے میں فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا. اچھا اگر آپ یہ ایک چیز سیکھ جائیں نا, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ کو بھی, زندگی بدل جاتی ہے. یہ جو ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اور اوور ریئیکٹ کرتے ہیں نا, یہ ہم خواتین کے بڑے وہ اس میں خسارے میں ہم چلی جاتی ہیں. کوئی ایشو ہو جائے گھر میں, فیملی میں, فوراً ریئیکٹ نہ کریں, وقت دیا کریں چیزوں کو, ان سچویشنز کو. یہ جو وقت ہے نا, وقت کے ساتھ ساتھ نا لوگ بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, سچویشن بدل جاتی ہے, کبھی کوئی سیم نہیں رہتا ہے, کچھ ایک جیسا نہیں رہتا. تو آج کی سیکھنے کی بات یہ میں کہوں گی کہ ہم سب نے اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہے. ہم فوراً ریئیکٹ تو نہیں کرتے, اسپیشلی اپنے بیچارے ہسبینڈ اور بچوں کی, کیونکہ گھر پہ ہم ہی چودھری ہوتے ہیں, اور وہ ایک طرح کے چاہے وہی ہمارے قوام ہے, ہسبینڈ اور بچے بھی ہے, جو بھی اپنی جگہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے غصے, ہمارے موڈ کی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کرتے ہوں یا ہم سے اوائڈ کرتے ہوں, اس چیز پہ نظر رکھنی ہے. ایسا نہیں ہونے دینا. ہم نے کسی سچویشن میں, کسی موقع پر, کسی حالات میں, غصہ ہو, خوشی ملے, غمی ملے, پریشانی ملے, کسی نے انسلٹ کی ہے, فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا. اور انسلٹ کا تو یقین کریں جواب دے ہی نہ, کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازے گا, اس کو اتنی بلندی عطا کرے گا کہ وہ انسانوں سے تو ضرورت ہی نہیں ہے نا آپ کو ڈیمانڈ کرنے کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ حلیم بڑا پیارا تھا, میرا دل کیا میں آپ سے شیئر کروں. باقی آگے بھی وہ صفات ہیں, ان کو بہت دفعہ پہلے میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں. کچھ مجھے آپ سے میں آیات لے کر آئی تھی آج, وہ میں پہلے تو مجھ سے پیچھے سنیں, ٹھیک ہے کیا 1:40 ہوں, ابھی ہے ٹائم, کیونکہ آخری بہت جلدی ہم 2-3 منٹ میں انشاءاللہ کر لیں گے. آیت نمبر 16 میں پہلے مجھ سے سنیں, اس میں ہم نے کیا سیکھا, اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ مین پوائنٹ سب سنیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرنا اور اس کا حکم ماننا چاہیے. اور آپ سب کو انکلوڈنگ می, ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری کتنی طاقت ہے. سب کے جو اندر جسے ضمیر کہتے ہیں نا, جو ہمارا اپنے نفس کی بہت ساری اقسام ہیں, ایک وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے, ہمیں خود پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, میں نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کر دی ہے, وہ بار بار بعد میں آ کے مجھے اسٹرائک کرے گی, مجھے فیل ہوگا, میرے اندر ایک میٹر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے
किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं, इंसान के अपने अंदर सबसे बड़ी अदालत मौजूद होती है। हमें पता है कि हम कहाँ पर कितनी ताकत है, हम नेकी कर सकते हैं, बुराई से रुक सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, अल्लाह से डर सकते हैं। कभी हम वाकई इंसान है, कमजोर पड़ जाते हैं, वो अल्लाह को और बंदे का मामला है, अल्लाह माफ करने वाला है, कोई शक नहीं। दूसरी बात इसमें क्या है, इस आयत नंबर 16 की बात कर रही हूँ, हर शख्स को अपनी जितनी उसकी माली हैसियत है उसके मुताबिक अल्लाह ताला की राह में खर्च करना चाहिए। और अल्लाह की राह में खर्च करना इंसान के अपने लिए बेहतर है, अल्लाह को कुछ नहीं चाहिए, हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए ही है। कुरान पाक में बार हाँ ये आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि अगर कोई अच्छा करता है तो उसके अपने लिए है, और कुछ बुरा करता है वो उसके अपने खिलाफ है। नंबर 3, जिस शख्स को बुखल से बचा लिया गया हकीकत में वो ही कामयाब है। असली कामयाबी क्या है? दिल की तंगी। और दिल की तंगी में फिर मैं यही कहूंगी कि जो हम खवातीन हैं हमारे अंदर होती है थोड़ी सी तंगी। यानी कि स्पेशली हमारे अंदर मैंने खवातीन में देखा है। देखिए मेरा मतलब किसी को ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने का नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरी बहनों के साथ है, तो मैं अपनी भी तरबियत करना चाहूंगी, मैं आपकी भी करना चाहूंगी। हमारे अंदर ये चीज थोड़ी सी है, मर्द थोड़े बड़े दिल के और बड़े ज़र्फ के होते हैं, और वाइस वर्सा भी होता है, ऐसा नहीं हमेशा ऐसे मैं वैसे। लेकिन जहां मैं बात खवातीन की करूं तो पर्सनल ना लीजिएगा, मेरा मकसद ये नहीं, हो सकता मैं अपने आप को सुना रही हूँ, मैं अपने आप को रिमाइंडर दे रही हूँ, आप बस सुन लीजिएगा, कभी भी मेरी बात से पर्सनल ना होइएगा। आपको लगे कि मैं ठीक कह रही हूँ, आप उस पर अमल कीजिए, अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप इख्तिलाफ कर सकती हैं, आपका हक है। लेकिन मुझसे शेयर करने के इस बहस में जाने का ना मेरे पास वक्त है, ना ही मैं आप लोगों को इन्वॉल्व करूंगी। ठीक है, कुरान पाक में इस चीज को जो बिला वजह की बहस है उसको नापसंदीदा करार दिया गया है। बड़ी जगह इसका भी जिक्र आया है कि वो लोग अपनी बहसों में हैं, तो बहसों में मसरूफ है। तो हमने इस किस्म की बहस नहीं करनी, इख्तिलाफ राय सबका हक है। एक्चुअली हम लोगों को ना इस चीज का ना इल्म नहीं है। मैं चाहती हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि इख्तिलाफ राय एक चीज है, इसका हक अल्लाह ने आपको दिया है। लेकिन हम इख्तिलाफ करते करते हम बदतमीजी में उतर आते हैं, हम बड़े छोटे प्यारे रिश्ते, करीब दूर दोस्त, हम लिहाज नहीं करते। तो आपने ना इख्तिलाफ में और इस बदतमीजी और बद अखलाकी में फर्क करना है, ये मैं बहुत चाहती हूँ। और ये मैं चाहती हूँ स्पेशली जो नई जनरेशन है ना, बड़ों को बात बदलना मुश्किल होता है, अपने बच्चों में ये चीज रखें कि अगर कोई इख्तिलाफ करता है, एक तो स्पेशली ये जो मजहब, फिरके हैं और सियासत, इनमें बिला वजह आप ना क्रिटिसाइज करें और कमेंट करने से बिला जरूरत परहेज कीजिए। मैं आपको प्यारा सा दोस्ताना बहन समझ के सबको मशवरा दूंगी, रिश्ते सबसे ऊपर रखें, माँ बाप के, बहन भाइयों के, दोस्तों के। ये जो हमें लगता है ना बाज दफा हम हक की बात कर रहे हैं, हम हक की बात करने का भी एक तरीका होता है। आप देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की बात कैसे की, सहाबा ने कैसे की, क्या और उनमें और आज हम जो कर रहे हैं, तो इनमें जरा फर्क आप देखिए। अब बात कहीं दूर और अलग सी निकल जाएगी जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप बस अखलाक के दायरे में रहते हुए हमने इस चीज को लेकर चलना है। तो दिल की तंगी जो है ना, ये हम सब लोगों में बहुत है, बहुत ज्यादा है। आजकल हम हमारे पास यानी कि किसी जमाने में मैं अपने बुजुर्गों का सुनती थी कि एक घर में, मैं अपनी फैमिली में आपको बहुत पुराने एक दादाजी थे उनका बता रही हूँ, मेरे इन लॉज की बात है। उनके घर में उनकी बेटी बेवा होकर आ गई अपने बच्चों के साथ, उनकी एक भाभी बेवा होकर आ गई अपने बच्चों के साथ, कुछ और भी खातून आ गई। वो सबके लिए कहते थे जो मैं खा रहा हूँ उसमें पानी ज्यादा डाल दो उस सालन में, और ये सब यहाँ पर आए बैठे खा ले, जो मैं खा रहा हूँ, जो अल्लाह ने मुझे दिया ये भी खा ले, इनके बच्चे भी। हम इतने आज देने को तैयार नहीं है, किसी को शेयर करने को तैयार नहीं, किसी की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। बंदा बर्दाश्त क्या करना है, खुदा ना अपने अंदर बर्दाश्त न करें, ये हलीम की सिफत लेकर आए, अपनी जात को, अपनी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाए, और हमें घर की हद तक अपने husband और बच्चों पे इतने मेहरबान रहें, इतनी मेहरबान रहें, इसे इबादत समझ कर कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो, और जो आप काम कर रही हैं उनके दिल खुश हों कि ये इस तरफ आई हैं, ये कुरान से जुड़ी हैं, तो कितनी तब्दीली आई है इनमें, हमारे घर में। तो इसका आपको भी फायदा होगा इंशाल्लाह, दुनिया में भी आखिरत। ठीक हो गया जी। अब इसमें और कुछ आयात हैं, आयत नंबर 16 से इसमें कहा पूरा सबा जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें इससे ज्यादा देगा। आपने ना आयात को करें नंबर पे, और ना ही मैं इनकी अरबी बोलूंगी, सिर्फ तर्जमा कि आपको अंदाजा हो कुरान पाक में कहाँ किस किस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अल्फाज की तब्दीली से क्या क्या बात की गई है। ठीक है, सुनिए।
जो कुछ तो खर्च करोगे अल्लाह ताला उससे ज्यादा दे। मोमिन अल्लाह के रास्ते में खुफिया और एलानिया खर्च करते हैं। सूरह आल इमरान 134, मुसलमान तंगदस्ती और खुशहाली में खर्च करते हैं। नंबर 4, ये सूरह 98, मुनाफिक सदका करने को जुर्माना समझता है। नंबर 5, सूरह तौबा ही से 99, मोमिन अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है। फिर सूरह बकरा 265, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने वालों की मिसाल सदाबहार बाग जैसी है। फिर सूरह बकरा 272, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करने वाले को पूरा पूरा अजर। आज की आखिरी इससे रिलेटेड सूरह निसा 114, अल्लाह की रजा के लिए किए गए काम का बड़ा अजर है। तो ये चीजें जो है ना आयात में इसलिए बताऊंगी कि शौक पैदा होगा आपको, और ये इस टॉपिक पे और थोड़ा ना वो ताकीदी एक फैक्टर आप फील करेंगी, और शौक पैदा होगा कि कहाँ कहाँ अल्लाह ताला किस तरह से हमें कह रहे हैं, हमें उम्मीद दिला रहे हैं, हमसे वादे कर रहे हैं। ठीक है जी। आज की ये थी आयत नंबर 16। अब मैं आपसे आयत नंबर 17 का करूंगी, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है। देखिए मैं पहले इसको कर लूं वरना ये मेरा मिस हो जाएगा। अब इसमें क्या है जी, आयत नंबर 17 में इन तुकरीदुल्लाह कर्दन हसना, बहुत दफा कुरान पाक में कर्ज हसना का आपको टॉपिक मिलेगा। इसमें क्या है जी, इसमें सीखने की बातें और हमने क्या करना है। नंबर 1, अल्लाह की राह में ये जो खर्च करना है वही उसी को कर्ज हसना ये कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि अल्लाह ताला सदका करने वाले के माल में बरकत भी पैदा करता है, उसे कई गुनाह बढ़ा देता है और उसके गुनाहों को भी माफ करता है। आप फायदे देखें। फिर अल्लाह ताला नेकी और नेकी करने वाले का कदरदान है। मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला कदरदान है ना, कोई किसी से उम्मीद ना रखिए, किसी से बिल्कुल छोड़ दे। अगर एज अ ह्यूमन कभी दिल में ज़हन में आए भी ना कि कोई मुझे कभी अप्रिशिएट करे, तो कभी नहीं, निकाल दें। बस जो जिसके लिए आप कर रहे हैं ना, अगर उसने देख लिया है ना, बस समझे आपकी मेहनत पूरी होगी। और वो देख रहा है, ये तो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, वो हर वक्त हमारे साथ है, वो देख रहा है। एक वाकया है, मैं नाम नहीं किसी का लूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनमें से था एक स्कॉलर थे, सॉरी अगर कोई जाना चाहती है वो जा सकती हैं, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी बात अचानक याद आई। वो आए, उन्होंने खुतबा दिया, कोई लाखों लोग होंगे, ये काफी देर पहले की जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा होता था। उन्होंने खुतबा दिया, मेरे ख्याल में हजारों लाखों लोग थे। जब वो खुतबा पूरा घंटे डेढ़ का, आई डोंट नो कितनी देर का था, वो देने के बाद जब वो फारिग होके जाने लगे तो एक शख्स आया कि मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और मैं लेट हो गया हूँ, आपका खुतबा, आपकी स्पीच मैंने मिस कर दी, तो काइंडली मुझे उसके मेन मेन पॉइंट्स बता दें। उन्होंने क्या किया, जहां उस शख्स ने उनको रोका था, शायद वो सीढ़ियां उतर रहे थे, वो वहीं बैठ गए। उसको पूरा उस एक डेढ़ घंटे का खुतबा उन्होंने दोबारा दिया। लोगों ने उनसे पूछा कि आपने दोबारा उतना बताने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा था सिर्फ एक शख्स के लिए। तो उन्होंने जो वो जो स्कॉलर थे, उन्होंने आगे से ये कहा कि मैं इसके लिए नहीं, मैं उस एक के लिए, मैंने ये पहले भी उस एक के लिए दिया है खुतबा, आगे चाहे लाख, अभी भी मैंने उस एक के लिए जो मुझे देख रहा है, जो मेरे साथ है। तो जब वो देख रहा है, वो कदर करने वाला है, तो दिल से निकाल दे। बहुत सारे मसले हमारी एक्सपेक्टेशन से होते हैं। तो अल्लाह ताला कदरदान है, और उससे बड़ा कदरदान कोई नहीं मिलेगा जितनी वो आपकी। आप थोड़ा सा भी उसके लिए करते हैं, आप थोड़ी सी एफर्ट करते हैं, इवन आप कुरान से रिलेटेड ले लें, आप कुरान सीखने की थोड़ी सी एफर्ट करती है ना, दिल से नियत से, वो रास्ते खोल देता है, वो आसानियां पैदा कर देता है आपके रास्ते में। वो क्या कुछ नहीं करता, बिछा देता है नेमतें आपके सामने, सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट। उससे बड़ा कदरदान आप किसी को नहीं पाएंगी। और इसमें ये आखिरी क्या है कि अल्लाह ताला, वो फिर आखिरी आयत क्या है कि गैब और पोशीदा बातों का इल्म रखने के बावजूद अल्लाह ताला बहुत बुर्दबार है, हिकमत वाला। अल्लाह ताला बहुत हलीम है, वो बिल्कुल कुदरत रखता है, लेकिन वो लोगों को जल्दी नहीं पकड़ता, उनकी गिरफ्त नहीं करता, उनको ढील देता है। और आयत नंबर 17 से ही रिलेटेड कुरान पाक में देखते हैं, सूरह अल हदीद में ये हम पढ़ चुके हैं। वहां पे ये मैंने बहुत डिटेल से ये कर्ज हसना का तब मैंने तैयार किया था टॉपिक, आज तो मुझे नहीं इतना मौका मिला। वहां पे हमने इसको काफी डिटेल से देखा था। खैर, लेकिन मैंने आपको बेसिक आज भी शेयर करने की कोशिश की है, असल में कहते किसको है और इसकी आगे से डिटेल क्या क्या है। इसमें बहुत वैरायटी है, लेकिन मेन यही है कि अल्लाह ताला की सदका करना, अल्लाह ताला को कर्ज देना है। सूरह हदीद आयत नंबर 11। फिर सूरह बकरा में ही 265 में है, सदका करने वाले को तस्कीन हासिल होती है। फिर सूरह बकरा 265 में ही है,
صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. سورہ تغابن 17 اسی آیت کا ہی اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے واپس کرے گا. اچھا میں نے تو آپ سے دعا انفا بھی شیئر کرنا تھا. اچھا چلیں اس کو بھی کرتے ہیں. مجھے دگنا تگنا سے یاد آیا, کبھی اس کا معنی کیا جاتا ہے 2 گنا, کبھی کیا جاتا ہے 3 گنا, اور کبھی کئی گنا. خاص طور پہ یہ جو باب مفعلہ سے آتا ہے تو کئی گنا کے ساتھ کیا جاتا ہے. سورہ بقرہ 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. سورہ بقرہ 261 میں ہے اللہ کے ہاں اضافے کی کوئی حد نہیں ہے. سورہ یوسف 88 اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے بے شک. سورہ التوبہ 99 جو یہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا, مومن جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. سورہ آل عمران 134 یہ بھی ہم نے دیکھ لیا, مسلمان تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. اور سورہ سبا 39 یہ بھی میں پہلے بتا چکی ہوں, جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ دیں گے. تو یہ دونوں آیات ملتی جلتی ہیں. تو ہم نے اس میں بہتر جو سیکھنے کی باتیں ہیں میں نے ساری کوشش کی ہے آپ سے, میں نے پوائنٹس وائز وہ شیئر کروں. آئیں جی کون ہے جلدی سے آئیں. اس جو آخری یہ جو حصہ رہ گیا ہے آیت 17 کا اور آیت 18 کا, کسی نے ترکیب کرتے ہوئے ان کو ایک ہی بنا دیا, تو اس لیے میں نے ان کو روک دیا تھا. یہ ایک بھی کر سکتی ہیں اور ان دونوں حصوں کو الگ الگ بھی کر سکتی ہیں. کون آئیں گی؟ عائشہ آپ آ جائیں. استاذہ میرے اور بہت سو رقیہ, رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, رقیہ آپ آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقیہ یہ جو آیت نمبر 17 کا حصہ رہ گیا نا واللہ شکور حلیم, اس کو ذرا بتائیے. جی واللہ شکور حلیم. واو جزائیہ ہے یہاں پہ. واو جزائیہ نہیں, رقیہ دیکھیں جزائیہ جو ہوتا ہے نا, آپ اس کو یہاں سے آپ اس کو نئی نئی بات شروع کریں, استنافیہ کہہ دیں, استنافیہ. سوری استنافیہ, واو ٹھیک ہو استنافیہ. گیا. ہاں واو استنافیہ. اللہ لفظ جلالہ کو کیا بنائیں گی آپ؟ یہاں پہ اللہ تعالی اسم ہے, لفظ جلالہ اسم ہے یہ, تو جی اس میں مبتدا اسم مبتدا. معرفہ بھی ہے, صرف اسم ہونا ضروری نہیں ہے, اور مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے, اور نکرہ بھی آ سکتا ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں. تو یہ مبتدا ہو گیا. شکور حلیم کو کیا بنائیں گے؟ یہ خبر ہے, مرکبی توصیفی بن کے خبر بن رہا. اچھا یہاں نا ایک قاعدہ لکھ لیں, آپ کو ہمیشہ یاد رہے, صفت کی صفت کبھی نہیں آتی. تو شکور بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, حلیم بھی, تو یہ مرکب توصیفی نہیں ہے. یہ دونوں خبریں بن کے آ رہی ہیں اللہ لفظ جلالہ کی, خبر 1 خبر 2, شکور اور حلیم. تو اللہ لفظ جلالہ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. کسی نے ترکیب اس طرح سے کی کہ تیسری خبر بنا دیا عالم الغیبی والشہادہ, چوتھی بنا دیا العزیز, پانچویں بنا دیا الحکیم. یہ جو اگلی صفات آ رہی ہیں. اور کسی نے کیا کیا, اس حصے کو الگ رکھا, ہم بھی الگ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے اسکرین شاٹ بس اتنا ہی ہے تو اس کو اتنا ہی کریں, یہ ایزی ہے. ترجمہ کریں, پہلے مبتدا کا پھر خبر کا. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور بردبار ہے. جی شکور جو نا فعول کی وجہ پہ, بالکل جی, بہت قدردان, بڑا قدردان, بہت تحمل والا, حلم والا, بردبار ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بے شک. چلے جی اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب آپ ابھی رکیے گا, اگلا حصہ بھی آپ ہی کیجیے گا. جی اس کو دیکھتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اگر ان تقرض اللہ, اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا کر, تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اسے یضاعف ہو, جو اس کے ساتھ ہا ضمیر تھی مفعول بھی کی تھی, تو وہ اسے پھر متعلقہ میں نے بعد میں کیا, اور انہوں نے بھی اسی طرح, بلکہ میں شاید کرنا بھول گئی ہوں اس کا ترجمہ, میں آپ کو کچھ ڈیٹیل شیئر کرنے لگی تھی. اٹس اوکے, خیر اب دیکھ لیتے ہیں. تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا, اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے. شکور فعول کے وزن پر, حلیم فعیل کے وزن پر. ویسے صفات ہیں, صفت مشبہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتے ہیں تو یہ مبالغے کا بھی یہی وزن ہے, اس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اب اس میں مبالغہ پایا جائے گا, بہت, یہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے. کچھ اگر مس ہو گیا ہو, دیکھیں بڑا کچھ شیئر کرنا ہوتا ہے, چھوٹی موٹی کوئی ترکیب میں کوئی ڈسکس کرنا رہ جائے مفعول, تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ آپ سب اس کو تھوڑا بہت دیکھ سکتی ہیں.
मुझे लग रहा है शायद युदाइफ हु के अंदर जो हा ज़मीर मफूल थी वो मैं शायद आपसे बताना भूल गई। मैं शुबाना जी, ये शायद शुबाना जी ने बता दिया वो आपको, इट्स ओके। मफूल भी था, लकुम मुतल्लिक था। ठीक हो गया जी। आज की आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। अब मुझे बताएं, आलिमुल गैब ये क्या है, इसे क्या बनाएंगे? ये आलिमुल गैबी मरकब इजाफी है और इसकी खबर बन रहा है किसकी खबर? अल्लाह ताला। अच्छा माशा, आप ये कह रही हैं कि जो पिछली आयत में अल्लाह लफ्ज़ जलाला उसी की खबर बनाने जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे भी कर सकती हैं। और क्योंकि ये खबर बनने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये मरफू है, कैसे पता चला? इसका मुदाफ वाला हिस्सा मरफू है। मुरकब इजाफी का मुदाफ से एराब का पता चलता है। और अगर कोई पिछली आयत से ना रखना चाहे ताल्लुक, यहाँ पर हुआ मुब्तदा माजूफ मान सकते हैं, उसकी इसको खबरें 3 बना सकते हैं। ठीक है जी। पहली खबर जी आलिमुल गैबी व शहादा। अश-शहादा का किस पर अतफ करेंगे? गैबी अल गैब पे। तो आलिमुल अल गैबी गैबी व शहादा ये सारा मिलकर एक बन जाएगी खबर। अल अजीज दूसरी बन जाएगी, अल हकीम तीसरी बन जाएगी। अल अजीज अल हकीम फ़ईल के वजन पर। ठीक हो गया जी। इसका जरा तर्जुमा कर दें और इसको आप चाहे तो तीसरी चौथी पांचवी खबर बना दें, चाहे यहाँ हुआ मुब्तदा माजूफ मानकर पहली दूसरी तीसरी खबर बना दें। दोनों चॉइसेस आपके पास है, जो अच्छा और आसान लगे। तर्जुमा करें। और अल्लाह ताला गैब का और हाजिर का जानने वाला है और वो जबरदस्त और हकीम है। अच्छा शाबाश, बहुत अच्छी कोशिश। बस बीच में और ना लेकर आए। हम ना खुद से कुरान पाक में एक लफ्ज का भी इजाफा नहीं कर सकते। यहाँ पे वाव नहीं आ रहा, आप इसके शुरू में भी और नहीं कहेंगी, और अल अजीज अल हकीम के बीच में भी वाव नहीं आ रहा है, इनके बीच में भी और नहीं कहेंगी। ठीक है, सिर्फ एक जगह आप कहेंगी वो। अगर आप यहाँ पर हुआ मुब्तदा माजूफ मान रहे हैं, वो गैब का जानने वाला, बल्कि शहादा को भी गैब के साथ ले आए, गैब और हाजिर का जानने वाला है। अल अजीज है, यानी कि सब पर गालिब है। अजीज के बहुत माना है, आप यहाँ पे बस गालिब के ले लें, उसका गलबा है और जबरदस्त है। अल हकीम है, हकीम में हिकमत भी होती है, हुक्म भी होता है। ये हा काफ मीम दोनों माना इसमें आते हैं। फिर ऐसा हकीम आप कह लें। और ये अल अजीज अल हकीम की सिफात जब भी आती हैं, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि अजीज होता है जिसके पास अथॉरिटी होती है, गलबा होता है। और हमारे यहाँ जब अथॉरिटी मिलती है तो हम उसका मिस यूज करते हैं, हम उस लोगों के साथ ज्यादतियां हो जाती हैं और नाइंसाफियां। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा अजीज है कि उसकी अथॉरिटी में, गलबे में हिकमत पाई जाती है। फिर हकीम के अंदर खुद भी हुक्म, फैसला और हुक्म का माना पाया जाता है। हुक्म भी उसका है जो कि हिकमत के साथ होता है। बस आज की क्लास का टाइम हो गया, वरना इसमें भी मैं कुछ डिटेल आपसे फिर कभी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला के नामों की तो अलग से पूरी पूरी क्लास इसकी हो सकती है, कभी मौका मिला इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक दें, हम इनको अलग से देखेंगे। इसका तर्जुमा मुझसे देख लीजिए, हाफिज अब्दुल सलाम साहब का। हर पोशीदा, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल गैब और अल शहादा वाले अल को अल इस्तगराकी कहा है, और इन्होंने तर्जुमा हर के साथ किया। इस क्लास में मैंने अभी तक अल की अकसाम आप लोगों से नहीं डिस्कस की। आप बस सिंपल पोशीदा भी कह सकते हैं, छुपे और हाजिर का, या छुपे और जाहिर का जानने वाला। और अगर आप हर करना चाहें तो ज़हन में रखिएगा, हर का माना अल की वजह से आया है, वो अल इस्तगराकी है जो अल्हम्दुलिल्लाह में भी है। हर पोशीदा और जाहिर को जानने वाला, इन्होंने वो नहीं लिखा शुरू में, इसका मतलब है इन्होंने हुआ मुब्तदा माजूफ नहीं मानना, इन्होंने पिछली आयत के साथ इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो और क्या करेंगे, तर्जुमा इन्होंने किया तो क्यों किया? सब पर गालिब, कमाल हिकमत वाला है। चलें जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग इसको स्टॉप कर रही हूँ।